So, very good afternoon. So, it's our first webinar for that NVS partner region. So, hopefully, all of you have joined. So, you having option in chat. So, if you have any query, you please write it down in chat. So, we will be just giving your reply that whatever your query, and that query will be not in the chat, but we'll just discuss about your query and we'll just reply back to you. So we are very much pleased that you have given an opportunity to Microsoft to showcase that Microsoft Teams capabilities in front of all of you. So here I will be showing something to you that first what you have to do. This is your browser. On your browser, you have to come to your browser. On that browser, you just you have to come to that. You have to type it that portal.office.com, and then you have to log in with your user ID and password. Before that, if you would like to just I'm just showing you that perfectly that how you have to do it. So I'm just this is that thing you have to do it. You please first go to your browser. On your browser, this is the browser you are getting that here you have to type that teams.microsoft.com/download. So you just click over there, and then this screen will open in front of you. So you have to choose that switch to India, and then there is an option to download for desktop. So you please download it, and download for mobile. So mobile phone is not required to download from here. You just go to your Play Store or App Store and download from there that Microsoft Teams. For your laptop or desktop, you please download from here, right? So what you have to do, it's very simple. On the browser, you have to type, again I am telling you, teams.microsoft.com/download, right? So here you have to come, and then you have to start this thing. This is the first thing you have to do. When your apps is on your system, so what you have to do, you will be getting a user ID and password from your regional office. So just log in with that ID, Office 365 ID. Don't put any Open ID, means Yahoo ID, Gmail ID. Those ID will not work over here. Again, I am telling, don't put any Yahoo ID, Hotmail ID, Gmail ID over here. It will not work. Only ID which you have received from your regional office, it will work for you, right? So just log in with that particular ID. Then what you have to do, when you will be going there, you will be coming on this particular screen. Basically, this screen, first screen, this particular screen will be getting by your principal. So what principal has to do? Now that I am telling that only next 1 minute, I will tell that what principal has to do, right? Principal will be getting this kind of classes. So principal has to go this any of this class, just click over there. So classes looks like this. Here you will be getting an option. That option is called that active your class. So you click this particular place, you will be getting. So click that active class, and when it will be active class, you will be coming on this particular page. Now here you are getting that more option. This is your class, this is your school name, and this is the class. When you will come to these 3 dots, this is called more option. See, this is the more option. Again, I am coming. This is your class, the teacher, that principal are getting. Principal has to come each and every class. Then
click that active classes, click on active class, then go to this particular three dots, go to three dots, then manage team, go to manage team. Here you will be getting only one teacher, that is you will be getting only one faculty member over here. So what you have to do, you just go to the add member, and in that add member there are two options, student and teacher. Student, already your NVS have been added, we have been added over here all the students. If any one or two students are not there, you can add by their Office 365 ID. For the teacher, you have to go this teacher option. There are two tabs, student and teachers. Go to teachers option, write it down there, Office 365 ID. Don't here also, don't put any Gmail ID or Hotmail ID. Everything you have to work on Office 365 ID. That particular, each and every teachers and student having their unique ID. So this particular ID you have to put over there, to whom you would like to add that teachers. Just add it, like I'm adding over that, suppose the faculty 3, then click on add. So that faculty already added. So I'm just putting, suppose that faculty 2. Let's see if I just click. So it has been added over here, right? So this is the added and then close. So you are getting that faculty 2 is here, right? When it will be like this, then your class is ready for take the class. Now this thing, every school and every principal, on behalf of principal, any FCSA or PGT computer science teacher, they can do it, because they are who is very much tech savvy, the teachers, they can just do it, because principal already stuck with some lot of works. So they have to do, each and every school they have to do like this way, right? Now you can say from here in manage team, you can see that how many students you have. That is in member section you will be getting, that is in member section. Here it is 0, but in some we have been not added because this is the dummy. So here you will be getting that all of your students. Suppose one student is not telling that I am not a part of that, so you can check if really he or she is not a part of that class. You can add manually from here, from add member option. Obviously they should have their Office 365 ID. If any student or teacher, they don't, if they come with you that I not received any user ID and password, in that case, already Mr. Ratnakaran sir told you that he is going to share a Excel file with you. So that Excel file you have to share with regional office, and regional office will create that ID for you, right? So this is the process. Next is that you are getting in left hand side, whenever you will open Teams, in left hand side, in my case it is opening activity chat Teams, but in your case you will be getting an option, first tab in the left hand side, first tab you will be getting NVS learning. So if you go that NVS learning, so small videos are there. Already we have been shared with you a stepwise document to you, right? That stepwise document, you can go how to create this class, how to create meetings, how we will be share assignment, everything it is there stepwise, 1 2 3 it is there. Still, if you need any kind of video reference, you just go to the NVS learning. There are a lot of short videos, so you just go through it for your instant reference. And that particular one, we have just added one document also, that also you can take the reference, but we have shared which you have received it from that your regional office, one document. That PDF document is the latest one, so just go with it. It will take only a day to just come on this particular platform and love to this particular platform, right? So I am handing over to, from this point of time, to Miss Pallavi Saxena. She will take you through deep dive over here, that how you will just create that chapter wise channels, and then you can just do that, create that channels. So handing over to you, Pallavi. Thank you, Kaushik, and very warm welcome to all of you.
And now we are going to start about Microsoft Teams. So Kaushik has already explained you some of the basic point which is required to just log into the Microsoft Team. So the same way I'm going to start, right? So what you have to do, again I'm repeating the steps because this is most important steps that you have to follow to just log in into the Microsoft Teams. Right, to so what you have to do, you have to just open your browser and type teams.microsoft.com/downloads. Okay, so just type this particular URL in your browser and then you just click on enter into it. After that you can log in with the Office 365 IDs by using username and password, right? So this is the first steps you have to follow for logging into the Microsoft Teams application. So I'm using both Hindi and English into that particular training. So आप लोगों को यहाँ पे Teams तरीके से आपको Teams इंस्टॉल करना है. अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ से इंस्टॉल करना है. अगर आप मैक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मैक डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐप स्टोर पे जाके वहाँ से Teams इंस्टॉल करना है. तो ये आपको पहला स्टेप्स करना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये वेब वर्जन पे यूज़ नहीं करना, आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे, ठीक है. तो ये आपको फर्स्ट जो आपको बिफोर लॉगिन इनटू द माइक्रोसॉफ्ट टीम आपको ये चीज़ डाउनलोड करनी है और आपको इसको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम पे. So this is the first steps you have to follow to just go into the Microsoft team. Okay. Once you log in into the Microsoft Teams, you will see this kind of interface, right? So you can see lot many classes according to your whatever class you are going to teach. You can see your classes in this particular window. Like let's suppose this is your class 0012 class 6. Right, the same kind of thing you will see in your Microsoft Teams window. ओके, सो यहाँ पे आपको एक क्लास वगैरह जो भी आपकी क्लास आप पढ़ाने जा रहे हो वो आपको सारी विजिबल होगी. वो आपके प्रिंसिपल या आपके आरओ जो भी होगा वो आपको अपने बैकएंड से आपको क्रिएट करके देंगे ये वो क्लासेस, तो आपको वो सारी यहाँ पे विजिबल होगी. और टीम्स हाउ यू कैन यूज टीम्स, तो यहाँ पे आप देखिए आपको सारे टीम्स के अंदर जो भी इनबिल्ट टूल्स है वो आपको अवेलेबल है. जैसे कि सबसे पहला एक्टिविटी है. सो इन एक्टिविटी यू कैन सी द नोटिफिकेशन, ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन मतलब जो भी आप कर रहे हो, कोई असाइनमेंट शेयर कर रहे हो, आपको रिप्लाई बैक आ रहा है, वो सारा का सारा इस एक्टिविटी टूल्स में आपको दिखाई देगा. ठीक है, तो आप उससे देख सकते हो कि कोई भी आपको चीज़, जैसे हमें कोई मैसेज आता है अपने फ़ोन पे तो हमें एक नोटिफिकेशन आ जाता है ऊपर. द सेम वे इट विल वर्क. So here you can see the notification, whatever student has shared the assignment or student have posted anything in the class. So all this thing you can see in the activity chamber, right? Next is chat. सो चैट इज, आपको ये चीज़ तो आपको पता होगी, चैट आप लोग ऑलरेडी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कोई ना कोई यूज़ कर रहे होंगे, उसमें चैट का ऑप्शन होता है. द सेम वे इट विल वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, राइट? सो चैट पे अगर मैं जाऊँ यहाँ पे तो आप किसी भी अपने इंटरनल जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल आपके कलीग हैं, आपके स्टूडेंट हैं, उनके साथ आप 1-to-1 चैट कर सकते हो. कोई डाउट है, कोई इशू है तो स्टूडेंट भी आपके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग चैट. एंड यू कैन आल्सो इंटरेक्ट विद द स्टूडेंट और योर कलीग बाय यूजिंग द चैट. ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपल स्टूडेंट का नाम लिखना है, जो भी स्टूडेंट के साथ आपको करना है, ठीक है, और आपको उससे नाम लिखिए. वो नाम यहाँ पे जब स्टूडेंट की आईडी बन जाएगी बैकएंड में तो उनका नाम यहाँ पे पॉपअप हो जाएगा. देन यू कैन स्टार्ट चैटिंग विद दैट पर्सन. ठीक है, द सेम वे हाय हेलो लिख के आप उसके साथ चैट कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चैट की फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हो, बट ये विद इन टीम्स ही काम करेगा. ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही यूजर्स के साथ ये चैट कर सकता है. अगर आप किसी बाहर के मतलब आप किसी बाहर के कोई और है, कोई और स्कूल है, उसके पास भी टीम्स है और अगर आप उससे ट्राई करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा. ये ओनली इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वर्क करेगा चैट फंक्शनैलिटी. ठीक है, उसके बाद आपका आता है ये टीम्स. वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि टीम्स में हमें कैसे क्लासेस यूज करनी है. उसके और असाइनमेंट भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. देन इट कम टू कैलेंडर. सो कैलेंडर के लिए आपने रत्नाकर सर ने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया था, बट स्टिल वी विल डिस्कस कि हम कैसे इसको शेड्यूल करेंगे, हम इसको कैसे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, लाइव ऑनलाइन क्लासेस शेड्यूल करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे कैलेंडर में देखेंगे. फिर आता है हमारा कॉल्स का. तो कॉल्स के अंदर हम लोग जैसे हम चैट कर सकते हैं टीम्स के अंदर, द सेम वे वी कैन डू द कॉल और वीडियो कॉल, राइट? सो कॉल्स के अंदर आपको भी यहाँ पे जाके द सेम वे यू हैव टू टाइप द स्टूडेंट नेम, राइट? इस तरीके से आपको नेम टाइप करना है. और यहाँ पे आप अगर आप राइट हैंड साइड में देखें तो आपको ऑप्शन आ रहा है कॉल और वीडियो कॉल का.
तो आप अपने कलीग के साथ, स्टूडेंट के साथ यहाँ से कॉल और वीडियो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। द सेम वे इट विल वर्क। सो इस तरीके की फंक्शनलिटी भी है, बट ये भी सिर्फ इंटरनल ही वर्क करेगा, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं करेगा। आप सिर्फ इंटरनल अपने कलीग और अपने स्टूडेंट के साथ बात कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉल एंड वीडियो कॉल, राइट। सो ये कॉल्स का फीचर हो गया। बाकी जो फंक्शनलिटी है वो एडवांस में आती है, वो हम लोग बाद में कोई और सेशन में देखेंगे। तो ये जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ है, जो आप रेगुलर इसको यूज कर सकते हो अपने डे टू डे टास्क के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने टीम्स के ऊपर। जो हमारी क्लासेस के बारे में आपको बताया गया है कि आपको इस तरीके की क्लासेस विजिबल होगी। जो भी आप क्लास पढ़ाने जा रहे हो स्कूल के अंदर, उस तरीके से आपको एक कोड होगा और आपको एक क्लास विजिबल होगी यहाँ पे, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपकी जो भी प्रिंसिपल होंगे या वीपी होंगे वो आपको क्रिएट करके देंगे, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी यहाँ पे। बस आपको इस पे लॉग इन करना है, इसमें जाना है इस क्लास के अंदर इस तरीके से, राइट। देन व्हाट यू कैन डू हियर, you can see the there is one channel called general channel। यहाँ पे जैसे आप इस क्लास के अंदर जाओगे आपको एक जनरल चैनल मिलेगा। ये जनरल चैनल आपका बना बनाया होगा, आपको नहीं क्रिएट करना है। क्लास जब बनती है उसी के साथ ये क्रिएट हो जाता है, राइट। सो यू कैन सी दिस जनरल चैनल। इस जनरल चैनल के अंदर आपको टूल्स मिलेंगे जिससे आप स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट के साथ कोई भी चीज़ शेयर करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इस जनरल चैनल के अंदर आपको पोस्ट मिलेगा, फाइल्स मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ग्रेड मिलेगा, क्लास नोटबुक मिलेगा। ये सारी फंक्शनलिटी आपको इस जनरल चैनल के अंदर ही मिलेगी, ठीक है। और इस क्लास के अंदर अगर आप देखना चाहते हो कि आपके कितने मेंबर हैं, कितनों ने ज्वाइन कर लिया है, सो दैट यू कैन ऑल्सो विजिबल दैट थिंग, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन 3 डॉट। तो ये जो 3 डॉट वाला ऑप्शन है, इसके अंदर सारी सेटिंग्स होती है क्लास की। जैसे कि हम अगर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करें तो हम सेटिंग्स में जाते हैं, राइट। कुछ भी सेटिंग करनी हो हमें उसके अंदर, द सेम वे इट विल वर्क फॉर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो यहाँ पे जो है 3 डॉट है, इसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स मिलेंगी टीम्स की, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हो। तो फर्स्ट जैसे आपको इसके अंदर अगर मेंबर देखने हैं, कितने मेंबर इसमें ज्वाइन करे हैं, कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए, तो वो आपको इस 3 डॉट पे क्लिक करना है। देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन मैनेज टीम। सो मैनेज टीम, ये गियर बटन जो आपको दिख रहा है मैनेज टीम का, ये है। इसमें आप जाके चेक कर सकते हो कि इस क्लास के अंदर कितने मेरे क्लास के अंदर कौन से टीचर पढ़ा रहे हैं और कौन से फैकल्टी हैं और कौन से स्टूडेंट है। तो आपको ये 2 चीज़ याद रखनी। जैसे आपको ये मेंबर टैब दिखेगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे ऑनर और मेंबर 2 ग्रुप दिखेंगे। तो ऑनर के अंदर जो भी आएगा वो आपके जो है कलीग होंगे, ठीक है। तो वो आपको इस क्लास में ऑनर के अंदर दिखेंगे, और जो मेंबर के अंदर दिखेंगे वो आपके स्टूडेंट होंगे इस क्लास के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो भी आपको मेंबर के अंदर विजिबल होंगे वो आपके स्टूडेंट होंगे, और जो आपको ऑनर के अंदर विजिबल होंगे वो आपके कलीग होंगे जो इस क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं तो खुद हूँ क्योंकि मैंने क्लास बनाई है, और यहाँ पे मैंने इनको एज ए कलीग यहाँ पे दूसरा टीचर असाइन किया हुआ है। सेम वे में मेंबर में मैंने सिर्फ 2 स्टूडेंट ऐड किए हुए हैं, just because कि अभी मेरे पास I'm just giving you demo, so I have added only 2 students, but in your case maybe you will add lot many student, maybe 50, 60 or 100. So in one class you can add up to 5000 student, right। इस क्लास के अंदर आप 5000 स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, इतनी लिमिट है एक क्लास की, राइट। सो दैट वे इट विल वर्क। सो मेंबर के अंदर आपको टीचर्स दिखेंगे, और ऑनर्स के अंदर आपको टीचर्स दिखेंगे, और मेंबर्स के अंदर आपको स्टूडेंट दिखेंगे। लेट्स सपोज वैसे ये स्टूडेंट सारे बैकएंड से ऐड होंगे, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब कुछ आपको कराया मिलेगा, आपको सिर्फ इसमें जाके पढ़ाना ही है। बट यस, अगर कोई ऐसा होता है कि आपको कोई स्टूडेंट कह रहा है कि मैं क्लास में नहीं हूँ, मेरे को क्लास विजिबल नहीं हो रही है, मैं ऐड नहीं हूँ, तो आप उस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको ऐड मेंबर का जो दिख रहा है एक बोल्ड वे में टेक्स्ट बुक, आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। आप 1-2 स्टूडेंट इस पे ऐड कर सकते हो इस क्लास के अंदर। तो आपको ऐड मेंबर पे जाना है। देन व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन फाइंड आउट 2 टैब्स, स्टूडेंट और टीचर्स। सो अगर आपको स्टूडेंट को एंटर करना है, इस क्लास में ऐड करवाना है, तो आपको सिंपल उसका नाम टाइप करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। जो भी स्टूडेंट का नाम है वो आप टाइप करिएगा और ऐड कर दीजिएगा। अगर आपको नाम पे कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कई नाम होते हैं, एक नाम से कई स्टूडेंट होते हैं, तो आपको अगर पता नहीं चल रहा तो आप एडमिन से पूछ लीजिएगा कि इस ईमेल आईडी ये स्टूडेंट के किस नाम से रजिस्टर किया है एडमिन पोर्टल पे, तो वो आपको बता देंगे। क्योंकि कई बार कई नाम होते हैं तो वो एडमिन जो होते हैं वो भी नाम कुछ तरीके से क्रिएट करते हैं, कि जैसे कि मेरा प्रीति है तो प्रीति कई है स्कूल्स में, तो वो प्रीति 1, 2, प्रीति 2, 3 इस तरीके से वो यूनिक करके क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप एक बार एडमिन से कंफर्म करा लीजिएगा अगर आपको डाउट हो इसमें। तो उसके बाद आपको ये नाम रिफ्लेक्ट होगा और आपको इसको ऐड कर देना है सिंपली, ठीक है। और तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट ऐड करना है यहाँ पे। और टीचर्स को अगर ऐड करना है तो वो भी आप टीचर्स के कॉलम में जाके, अगर आपको और किसी को आपको कोई कहता है कि मुझे इस क्लास में ऐड कर दो, वैसे ये टीचर्स को ऐड करने का काम जो है वो प्रिंसिपल ही करेंगे, बट अगर ऐसा कभी केस आता है
कि आपको भी ऐड करना है, तो आप टीचर्स पे जाके यहाँ पे टीचर्स का नाम टाइप करिएगा जिसको भी आपको ऐड करना है, और वहाँ पे वो पॉपअप होगा और ऐड पे क्लिक करिएगा तो वो इस क्लास में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप अगर एक दो स्टूडेंट आपको कहा जाता है ऐड करने को, तो आप यहाँ पे जाके, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आप प्लीज इसको एक बार सुनिएगा। What you can do, you can just click on add member, right, and then this kind of window will open. Then you have to type the name of the student here and the name of the teacher if you want to add, and name of the student here you can type the name of the student which you want to add, and then click on the student name and click on add, right. So this way you can add more students into your class, right, and click on close. तो देखिए यहाँ पे मेरे 4 स्टूडेंट, पहले 2 ही थे, अब मैंने 4 ऐड कर दिए, राइट। दिस वे आप इसमें और स्टूडेंट ऐड कर सकते हो। वैसे ये आपका काम नहीं है, बैकएंड से हो जाएगा, बट स्टिल अगर कोई स्टूडेंट कंप्लेन करता है कि वो ऐड नहीं है, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए चीज़ें, राइट। तो ये एक प्रोसेस है आपको स्टूडेंट और टीचर्स को ऐड करवाने का क्लास के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद आपको कभी भी आपको कोई डाउट होता है कि मेरे क्लास में और किसी ने ज्वाइन किया या नहीं, तो आपको सिंपल मैनेज टीम पे आके मेंबर सेक्शन में आके आपको मेंबर्स एंड गेस्ट में आके ये सारी चीज़ें विजिबल होंगी, कितने स्टूडेंट आपके क्लास में ज्वाइन किए। लेट्स सपोज किसी कोई ऐसा स्टूडेंट ज्वाइन कर जाए, किसी बाय मिस्टेक आपने किसी ऐसे को ऐड कर दिया जिसको आपको रिमूव करना है क्लास से, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्रॉस बटन दिख रहा है, इस पे क्रॉस कर दीजिएगा, वो स्टूडेंट इस क्लास से रिमूव हो जाएगा, राइट। सो दिस वे आप किसी को रिमूव करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, या कोई स्टूडेंट छोड़ के चला गया क्लास, आपको उसको हटाना है, तो आप यहाँ पे जो क्रॉस बटन दिख रहा है उस पर आप क्लिक करिएगा, सो दैट स्टूडेंट विल रिमूव फ्रॉम दैट क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट को ऐड कर सकते हो और इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्लास के अंदर की बात कि आपको स्टूडेंट को कैसे इसको ऐड करना है। अब हम क्लास में जनरल चैनल पे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या एक्टिविटीज़ के अंदर कर सकते हैं और हमने ये क्लास बनाई क्यों है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दैट। हम क्यों नहीं डायरेक्टली कैलेंडर में जाके मीटिंग सेटअप करके स्टूडेंट के साथ कर लेते हैं। तो इस क्लास को क्रिएट करने का जो मेन मोटिव है वो ये है कि आपको सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी करनी है। आपकी ये क्लास क्रिएट हो गई, स्टूडेंट ऐड हो गए बैकएंड पे, अब आप इसमें जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो या कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, उसमें आप ग्रुप बना देते हो, राइट। वाई? बिकॉज आपको बार बार किसी एक एक पर्सन को आपको चीज़ें मैसेज भेजना पड़े, तो इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू मैनेज सच काइंड ऑफ। अगर आप ग्रुप बना लोगे तो आप एक ही ग्रुप में उस मैसेज को डालोगे, वो सबको मिल जाएगा। सेम वे इट विल वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट टीम, राइट। सो हेयर हमने क्या किया, एक क्लास बना ली है, हमने उसमें स्टूडेंट ऐड कर दिए, राइट, उसमें फैकल्टी ऐड कर दी है। तो अब हमें कोई भी अनाउंसमेंट करनी है, कोई पोस्ट करना है, कुछ असाइनमेंट शेयर करनी है, तो उस क्लास 6 के रिगार्डिंग जितने भी स्टूडेंट उसमें ऐड हैं वो सबको एक साथ उनको डिलीवर हो जाएगी। और अगर हमने कोई उनके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है तो हम सिंपली उस मीटिंग में जाके उस क्लास का नाम देंगे, जितने भी स्टूडेंट हैं वो सारे के सारे उस मीटिंग के अंदर आ जाएंगे। हमें बार बार उनकी ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है मीटिंग में इनवाइट करने के लिए, राइट। तो इसलिए हम इस क्लास को बनाते हैं। तो देखिए क्लास बन गई। अब हम इसके जनरल चैनल पे पोस्ट के सेक्शन पे आते हैं। तो पोस्ट के अंदर व्हाट वी कैन डू, इफ यू वांट टू से समथिंग टू योर स्टूडेंट, हाय, हेलो, वेलकम मैसेज, वो आप कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अनाउंसमेंट शेयर कर सकते हो, इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे सकते हो स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनको मिल जाएगी। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा वेलकम टू क्लास 6, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये मैसेज लिखा, पोस्ट के अंदर जाके टाइप करेंगे आप इसको, ठीक है, वेलकम टू क्लास 6, इस तरीके से। और यहाँ पे इसको ये जो सेंड वाला बटन है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, तो ये मैसेज आपके सारे स्टूडेंट, जो इसमें 4 स्टूडेंट मैंने आपको दिखाया ऐड हुए, इन सबको ब्रॉडकास्ट हो जाएगा ये। तो देखिए मैंने यहाँ पे ना एक अपनी जो एक स्टूडेंट है दीप सक्सेना नाम से, उसको मैंने यहाँ पे लॉगिन कराया हुआ है अपने दूसरे ब्राउजर पे, दूसरे विंडो पे। तो अगर वो इस क्लास में जाए तो देखिए आपने जो भी पोस्ट किया है वो यहाँ पे इसको विजिबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ये एडेड है और इसको वो जो भी आप एक्टिविटी करोगे, पोस्ट करोगे, वो सब इसको यहाँ पे विजिबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्लास वर्क करती है। देखिए यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे ये मेरा पेरेंट क्लास है, ठीक है, ये देखिए मेरी पेरेंट क्लास है। तो यहाँ के जाके मैं अगर इसको यहाँ पे हाय हेलो लिखती हूँ मैं कुछ भी, ठीक है, तो देखिए एट द सेम टाइम दीप को ये विजिबल हो रहा होगा, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्लास, तो इस क्लास के अंदर जो भी मेंबर हैं, आप देखिए ये दीप सक्सेना जो है इस क्लास का पार्ट है, यहाँ पे देखिए आप, ये इस क्लास का पार्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वो विजिबल हो रहा होगा, वो इस अकॉर्डिंग जो भी बच्चे इसमें ऐड होंगे और जो भी फैकल्टी ऐड होंगे उन सबको ये चीज़ें विजिबल होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं अपने अनाउंसमेंट या इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने के लिए, ठीक है। इसमें और भी चीज़ें हैं, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली लर्न करोगे इस चीज़ को। अभी मैं सारा कुछ कवर नहीं कर रही हूँ बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे, बट ये कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अगर आपको कोई फाइल शेयर करनी है तो यहाँ पे अटैचमेंट का भी कॉलम है पोस्ट सेक्शन में,
तो वो आप अटैच करके फाइल भेज सकते हो। जैसे कि आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल है या इंपॉर्टेंट टाइम टेबल है स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, राइट, तो आप 1 बाय 1 जाके करोगे तो क्वाइट डिफिकल्ट है, तो आप यहीं पे कर दोगे। अगर इस क्लास का टाइम टेबल है तो आप यहाँ पे जाके अटैचमेंट का कॉलम है, ठीक है, अपलोड फ्रॉम माई कंप्यूटर, देन इट विल ओपन ए न्यू विंडो विद इन फ्रंट ऑफ यू। सो आपको जो भी टाइम टेबल है स्टूडेंट के साथ आप शेयर करना चाहते हो वो आप यहाँ पे शेयर कर दोगे, ठीक है। तो अभी मेरे पास कुछ है तो मैं देखती हूँ यहाँ पे अगर मेरे सिस्टम पे कुछ इम्पोर्टेंट है। तो जैसे ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट है तो मैं अगर ये शेयर करना चाहती हूँ, इसके अंदर टाइम टेबल मैंने बनाया हुआ है पूरे क्लास का, तो वो मुझे शेयर करना है। तो यहाँ पे मैं इस फाइल को अटैच करके और इस पर सेंड पे करूँगी, तो ये टाइम टेबल जो है अटैच होने के बाद ये सबको सेंड हो जाएगा। तो पहले अगर आप ऐसी क्लास नहीं बनाते, स्टूडेंट ऐड नहीं करते, तो आपको सबको 1 बाय 1 जाके करना पड़ता है या आपको सबको ईमेल भेजनी पड़ती, थोड़ा सा हेक्टिक था काम। यहाँ पे आप देखिए, आप यहीं पे सारा वो फाइल शेयर कर रहे हैं, तो इससे आपका काम बहुत इजी हो रहा है। और स्टूडेंट अपने एंड पे देखिए, ये स्टूडेंट का लॉगिन है, इस स्टूडेंट के लॉगिन पे आप देखिए उनको इजीली ये फाइल दिख रही है, एंड द स्टूडेंट कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर, ठीक है। वो स्टूडेंट यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ पे डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो पोस्ट के अंदर। कोई भी फाइल टाइम टेबल वगैरह भी शेयर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे चीज़ें हैं जैसे कि अगर आप इस 3 डॉट पे जाओगे, इस पे पोस्ट के में, यहाँ पे कुछ ऐप्स अवेलेबल हैं जो आप यूज़ करना चाहते हो अपने कुछ स्टूडेंट के साथ कोई नई चीज़ शेयर करना चाहते हो और उस ऐप्स के थ्रू करना चाहते हो, तो यहाँ पे लॉट मेनी ऐप्स अवेलेबल। आप इस पे मोर ऐप्स पे क्लिक करना, आपको बहुत सारे ऐप्स मिलेंगे, जैसे वेदर की ऐप हो गई, ठीक है, बहुत ही फॉर्म्स की हो गई, यूट्यूब की ऐप हो गई। तो आप जैसे यहाँ पे यूट्यूब मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, तो अगर मुझे कुछ भी शेयर करना है यूट्यूब से, यूट्यूब में जैसे कुछ है क्लास 6, लेट सपोज मैं टाइप करती हूँ यहाँ पे क्लास 6 साइंस सिलेबस, इस तरीके से कुछ टाइप करती हूँ मैं, तो यहाँ पे जो भी होगा यूट्यूब में वो सारा यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ये देखिए यूट्यूब पे सारा का सारा आ रहा है। तो मैंने ये लिंक स्टूडेंट के साथ शेयर करना है, ठीक है। मैं अगेन यूट्यूब पे जाती हूँ, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ क्लास 6 साइंस सिलेबस, लेट सपोज। देखिए यहाँ पे जो भी 6th का सिलेबस होगा वो यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगा और यहाँ पे मैं जाके उसको सेंड पे क्लिक कर दूंगी। तो ये पूरा का पूरा साइंस 6 एनसीईआरटी का जो भी सिलेबस है वो स्टूडेंट को शेयर हो जाएगा यहाँ पे यूट्यूब के थ्रू। तो आप देखिए स्टूडेंट के एंड पे भी ये विजिबल हो रहा है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली इस लिंक पे क्लिक करेगा और उसको एक नया ब्राउजर पे यूट्यूब वाला विंडो खुल जाएगा। तो इस तरीके से आप पोस्ट पे जाके यूट्यूब वाली फंक्शनैलिटी भी यूज कर सकते हो। और आपको वो कैसे ऐड करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये आपको ऐड नहीं होगा इस पोस्ट सेक्शन पे, आपको इस 3 डॉट पे जाना है, देन यू हैव टू टाइप यूट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यूट्यूब ऐप आपको विजिबल होगी, आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है और ये ऐड का बटन आएगा वो कर देना है, तो वो ऐप नीचे आपकी ऐड हो जाएगी। मैंने अभी ऐड कर रखी है इसलिए मुझे अभी शो नहीं होगा, बट आपके केस में वो शो होगा आपको। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी ऐप्स मिलेंगी, वो आप जब आप इस पे यूज टू हो जाओगे टीम्स के अंदर, तो आप इसको और इसको और तरीके से आप देख पाओगे कि इसको क्या क्या ऐप से आप कर सकते हो। अभी इतना ही करते हैं क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप इस पे जल्दी से जल्दी इसको यूज करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपको और भी चीजें पता चलती जाए। जैसे आप इसको यूज टू हो गए, आपको और भी चीजें इसमें पता लगती रहेंगी कि और आप क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पोस्ट सेक्शन यूज कर सकते हो। अब हमारे जनरल के अंदर एक फाइल टैब होता है, ठीक है, दिस इज फाइल टैब and this is also very important features of Microsoft Teams, right? In the file tab, what you can do, let's suppose you want to create some folder, you can just store some important document into your system, right? You can create the folder, you just upload that particular important document, like any kind of notes, movies, music, and any kind of important document from your school. So you can just upload in that particular folder by creating the folder in your system. The same way it will work here by using this file tab. तो इस फाइल टैब के अंदर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह रखने हैं क्लास 6 से रिलेटेड, वो आप इसमें रख सकते हो फोल्डर क्रिएट करके। और सबसे ज़्यादा ब्यूटी ये है इस फाइल टैब की कि आप जहाँ पे जो भी क्रिएट कर रहे हो, इट विल नॉट कंज्यूमिंग योर सिस्टम स्पेस, इट इज़ डायरेक्टली सेव इन द क्लाउड, राइट? सो वॉट एवर यू आर गोइंग टू सेव इन द फाइल टैब, इट इज सेव्ड इन द क्लाउड, राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ फाइल टैब। सो आपको यहाँ पे जैसे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करोगे, इस फाइल टैब में जाके अगर आप फोल्डर क्रिएट कर दो, लेट सपोज आप साइंस टीचर हो और आपको साइंस पढ़ाना है, तो आपने साइंस का फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है। और ये सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना आप सबको पता ही होगा सिस्टम पे, तो सेम वे इट विल वर्क, आपको एक फोल्डर का नाम देना है और ये क्रिएट हो जाएगा फोल्डर, ठीक है। अब ये फोल्डर क्रिएट हो गया, अब इसके अंदर आप कुछ भी साइंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट रख सकते हो कि वो आप स्टूडेंट को शेयर करना चाहते थे, तो आपने इस फोल्डर क्रिएट किया, आपने वहीं पे रख दिया, शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट यहीं से फोल्डर, उनको ये फोल्डर विजिबल होगा उनके एंड पे टीम्स के अंदर,
ठीक है, तो वो डायरेक्टली इस फोल्डर पे जाएंगे, नोट्स देखेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये इसका एडवांटेज है। लेट सपोज मैंने यहाँ पे फाइल्स, यहाँ पे अगर इस फोल्डर के अंदर मुझे कुछ अपलोड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिंपली इस फोल्डर के अंदर जाना है, फाइल टैब के अंदर। ठीक है, ऐसे जनरल पे क्लिक करना है, फाइल्स के अंदर जाना है और जो भी फोल्डर मैंने यहाँ पे बनाया है देखिए विजिबल हो गया मुझे। ठीक है, तो इस फोल्डर के अंदर जाना है और यहाँ पे देखिए ऊपर अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। अपलोड मतलब कि कोई भी सिस्टम से आपको कोई चीज़ अपलोड करनी है तो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। आप अपलोड पे क्लिक करिए, फाइल टैब पे क्लिक करिए। ठीक है, तो आपको जो भी चीज़ें, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो भी आपको अपलोड करना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए और इसको अपलोड कर दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसमें देखिए ये अपलोड हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें अपलोड कर सकते हो कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक। तो अब अगर मैं स्टूडेंट एंड पे जाऊँ, ये देखिए मेरे स्टूडेंट का लॉगिन है। अगर स्टूडेंट को साइंस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, नोट्स चाहिए, तो उसको पता है कि मेरे टीचर ने अपलोड कर दिया, वो फाइल पे जाएगा। ठीक है, और या आप एक काम करो, आपने जो भी अपलोड किया आप यहाँ पे लिख दो पोस्ट सेक्शन पे कि आई हैव, यहाँ पे जाके पोस्ट सेक्शन पे आप ये चीज़ मेंशन कर दो। ठीक है, पोस्ट सेक्शन पे जाके, बिकॉज पोस्ट तो नोटिफिकेशन के लिए ही है। ठीक है, तो आप पोस्ट पे जाके ये लिख दो इस तरीके से कि you have created an important document in the post section in the file tab, right? ऐसे करके आप लिख दीजिए I have created important folder with the name of science। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिए एंड प्लीज रेफर दिस फॉर नोट्स। इस तरीके से आप यहाँ पे डाल दीजिए पोस्ट के अंदर, तो स्टूडेंट को पता चल जाएगा कि आपने एक साइंस नाम का फोल्डर फाइल टैब में बनाया है और वो वहाँ पे जाके जो भी नोट्स हैं वो देख सकता है। तो अगर मैं स्टूडेंट के लॉगिन पे जाऊँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का लॉगिन है, वो इस क्लास के अंदर गया, उसने फाइल पे क्लिक किया। ठीक है, तो ये जो फोल्डर आपने क्रिएट किया उस पर जाएगा और जो भी आपने अपलोड किया है उसको वो डाउनलोड कर सकता है और यहीं से देख सकता है और यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकता है, राइट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे कि in spite of creating that folder in your system, you are going to create in the Teams application. And what is the advantage of this? Whatever you are going to create in the Teams application, it will directly be accessible from the student end, right? So you don't have to share it one by one with the student. Student can directly fetch it from the Microsoft Teams, right? So this is the advantage of creating the folder in the file tab. So इस तरीके से आप और भी फोल्डर, लेट सपोज इस क्लास के अंदर मैथ्स टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको अपना फोल्डर बनाना है, वो यहाँ पे जाएं, फोल्डर पे क्लिक करें, मैथ्स नाम का फोल्डर बनाएं। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये देखिए उनके नाम का फोल्डर बन गया, उनके सब्जेक्ट का, और यहाँ पे जाके उनको कुछ भी मैथ्स से रिलेटेड अपलोड करना है, देन दे कैन डू इट, राइट। सो इस तरीके से आप इस फाइल टाइप को यूज कर सकते हो कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखने के लिए। बस ये याद रखना है कि आप यहाँ पे जो भी रखोगे वो स्टूडेंट को एक्सेसिबल होगा, तो यहाँ पे वही चीज रखिएगा जो चीज आप चाहते हो कि स्टूडेंट भी उसे देख पाए, राइट। तो यहाँ पे जो भी आप रखेंगे वो सब कुछ स्टूडेंट को दिखेगा उनके एंड पे। तो बस आपको ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। अगर आप कोई भी हिडन वे में करना चाहते हो तो वो फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे आप जो भी क्रिएट करोगे वो सब कुछ स्टूडेंट को और जो आपके कलीग होंगे उनको सबको विजिबल होगा। ठीक है, तो ये एक एडवांटेज हो गया आपका ये फाइल टैब का। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हो। अब एक और चीज़ आती है आपके फाइल टैब के अंदर कि लेट सपोज आपको आप लोग वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पे काम करते होगे रेगुलर, ठीक है, असाइनमेंट वगैरह या कुछ भी क्रिएट करने के लिए। तो अब एक चीज़ और आती है कि आपके सिस्टम पे कई बार वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इंस्टॉल नहीं होता, कई बार आप इंस्टॉल नहीं होता, कई बार आप इंस्टॉल करते हो। अगर आप इंस्टॉल भी करते हो तो आप उसका बिल्कुल अर्लियर वर्जन या ओल्डर वर्जन आपको मिलता है, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन में तो आजकल सब में लाइसेंस मांगता है, तो आपके पास ओल्डर वर्जन होता है 2007 या 2003, राइट। तो आप वो इंस्टॉल करके उससे काम चलाते हो। बट लेट सपोज अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और आपके पास जो है न्यूअर वर्जन नहीं है या आपके पास है ही नहीं वो सॉफ्टवेयर, तो आप कैसे करोगे? तो आपको ऑफिस 365 के अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं, राइट। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है टीम्स के अंदर ही उसको यूज़ कर सकते हो। वो कैसे? What you can do here, you can just click on new, जैसे हमने फोल्डर क्रिएट किया था, the same way we can click on new, right, and the first option is folder, the next option is Word, Excel and PowerPoint। ये दो को हम बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इस पे नहीं काम कर रहे, हम लोग इस पे 3 पे काम कर रहे हैं, राइट। सो ये यहाँ पे देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आपको दिख रहा है। अगर आप वर्ड पे क्लिक करोगे
तो आपसे कहेगा कि आप क्या नाम रखना चाहते हो उस वर्ड का। लेट सपोज मैं यहाँ पे कोई टेस्ट क्रिएट कर रही हूँ स्टूडेंट के लिए, यहाँ पे टेस्ट लिख दिया और क्रिएट पे क्लिक किया, तो देखिए एक वर्ड फाइल मेरे सामने खुल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऑटोमेटिकली टीम्स के अंदर ही वर्ड को यूज कर सकती हूँ इस तरीके से कि देखिए मैं कुछ भी टाइप करूँ, इसमें सब कुछ यहाँ पे हो रहा है जैसे कि हम अपने सिस्टम पे करते हैं। जैसे कि हमारे सिस्टम पे अगर वर्ड इंस्टॉल होता है तो हम सिस्टम पे भी इसको ओपन करते हैं। द सेम वे इट विल वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स विदाउट नीडिंग टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन योर सिस्टम। आपको ये वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली टीम्स के अंदर ही खुल रहा है, डायरेक्टली फेच हो रहा है क्लाउड से। ठीक है, तो ये ऑफिस 365 पैकेज के साथ ही आता है। तो दिस वे यू कैन यूज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट राइट इन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। तो आप देखिए यहाँ पे सारी वो फंक्शनैलिटी है। और लेट सपोज आपने बाय मिस्टेक टीम्स पे क्रॉस पे क्लिक कर दिया या आपका सिस्टम बंद हो गया, तो आपका ये डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फाइल्स के अंदर सेव हो जाएगा। आपको कोई ये नहीं है कि आपका बंद हो गया तो आपका डॉक्यूमेंट गया, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर आप यहाँ पे इसको सेव करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करिए, ये देखिए आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, ये देखिए टेस्ट नाम से। ठीक है, तो इस तरीके से आप वर्ड, पावर, एक्सेल, पावर पॉइंट फाइल्स के अंदर जाके न्यू पे क्लिक करके सारे ये फंक्शनैलिटी यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। चाहे आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर है चाहे नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्टली क्लाउड से आ रहा है, ये डायरेक्टली ऑफिस 365 का पैकेज है। ठीक है, तो ये एक ब्यूटी है आपके फाइल टैब का यूज करने का। तो आई होप पोस्ट एंड फाइल टैब का आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि इसका फंक्शनैलिटी क्या है, इसका यूजेस क्या है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पोस्ट योर क्वेरीज इन द चैट सेक्शन। वी हैव मोस्ट ऑफ द टीम्स अवेलेबल टू जस्ट रिप्लाई यू बैक इन दैट पर्टिकुलर चैट, राइट। कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज आप उस पर लिखिए। तो हम लोग इसको सेशन को खत्म करने के बाद, और वैसे बैकएंड पे टीम्स हैं तो वो आपको रिप्लाई करेंगी जो भी आपके डाउट्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पोस्ट एंड फाइल हो गया। क्लास नोटबुक आज मैं डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज इट इज वेरी ह्यूज टॉपिक, इट विल रिक्वायर 2 hours टू डिस्कस ऑफ होल क्लास नोटबुक। सो ये एक एडवांस फंक्शनैलिटी है दैट वी कैन जस्ट कवर अप वंस यू आर कॉप अप विद द टीम्स एप्लीकेशन। जब आप टीम्स से बिल्कुल रेडी हो जाओगे, आप हैंडी हो जाओगे कि आपको क्लासेस कैसे यूज करना है, क्लासेस कैसे लेनी है, देन वी विल कवर दिस क्लास नोटबुक। असाइनमेंट अभी थोड़ी देर में देखते हैं, इसको थोड़ा सा फंक्शनैलिटी असाइनमेंट की देखेंगे। थोड़ी बहुत आप लोगों को रत्नाकर सर ने भी बताई है, बट डेफिनेटली वी विल कवर अबाउट दिस असाइनमेंट एंड ग्रेड पोर्शन। अब इस क्लास के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो और देख लेते हैं। इस क्लास के अंदर हम चैनल्स बना सकते हैं। चैनल्स मतलब हम चैप्टर वाइज बना सकते हैं। जैसे कि ये मेरी क्लास 6th है, लेट सपोज ये 001 साइंस का कोड है, ये साइंस पढ़ाओगे आप इस क्लास में, तो यहाँ पे आप चैनल्स बना सकते हो, सब्जेक्ट बना सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे जैसे 3 डॉट पे क्लिक किया, मैंने आपसे बताया कि कोई भी चीज़ आपको सेटिंग वगैरह करनी है आपको 3 डॉट पे ही जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके आप ऐड चैनल, इसका सेकंड ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके आप ऐड चैनल पे क्लिक करोगे। लेट सपोज ये साइंस की क्लास है तो आपका जो सबसे पहला टॉपिक है वो लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, इस तरीके से है। तो आपने ये पहला चैप्टर का नाम लिख दिया और आप इसके अंदर ये जो आपका पहला चैप्टर बन गया साइंस का, जो पहला टॉपिक है साइंस के अंदर, उसके अंदर आप उस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ा सकते हो उस चैनल्स के अंदर, राइट। तो इस तरीके से आप चैनल क्रिएट कर सकते हो चैप्टर वाइज। तो अभी थोड़ी देर में चैनल क्रिएट हो जाता है, फिर मैं आपको शो करती हूँ क्या दिखता है। और ये जो चैनल आप क्रिएट करोगे, देखिए स्टूडेंट एंड पे भी ये विजिबल हो रहा है द सेम वे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो। ये देखिए चैनल क्रिएट हो गया ये। ठीक है, तो इस चैनल के अंदर भी देखिए पोस्ट वाला सेक्शन भी होता है। ठीक है, इस चैनल्स के अंदर पोस्ट होगा, फाइल होगा। ठीक है, बट ये क्लास नोटबुक और असाइनमेंट वगैरह नहीं होता है जो आप मैनुअल चैनल क्रिएट करोगे। तो इसके अंदर आप लॉज ऑफ नेशन से रिलेटेड पढ़ा सकते हो। तो ये इजी होता है कि सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर लेने को क्लास को, क्योंकि फिर क्या होगा कि आपको अगर आप जनरल में ही सारी चीज़ें पोस्ट करते रहोगे तो इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको कोई चीज़ें देखनी है कि मैंने उस दिन क्या पढ़ाया था, क्या नोट्स बनाए थे, तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए आप एक चैप्टर वाइज अगर आप क्रिएट कर लोगे चैनल वाइज तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ ढूंढना है तो आपको पता है मैंने इसी में पढ़ाया होगा, यही मेरा चैनल है, तो आप उसमें आसानी से देख सकते हो उसको। ठीक है, बट इट्स अप टू यू कि आप इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, बट एक वे आउट है, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे आप दूसरा आपको कोई चैनल बनाना है तो लेट सपोज आपको ग्रेविटी पढ़ानी है तो आपको ग्रेविटी से रिलेटेड आप चैनल बना लो, उसके अंदर आप ग्रेविटी पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो दिस वे यू कैन जस्ट ऑर्गेनाइज योर क्लासेस। दिस इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट यू कैन डू विद इन योर क्लासेस। ठीक है, जैसे हम अपने फोल्डर के अंदर आते हैं तो ऑर्गेनाइज करने के लिए, वैसे हम यहाँ पे चैनल्स बना लेते हैं। ठीक है, तो चैनल्स के अंदर आप इसको बहुत ऑर्गेनाइज वे में चीज़ें कर सकते हो। ठीक है,
और एक चीज और है चैनल्स का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो है पब्लिक चैनल है। पब्लिक मतलब कि आप यहाँ पे जो भी क्रिएट कर रहे हो चैनल, वो आपके दूसरे एंड पे स्टूडेंट को दिख रहा है। आप देखिए यहाँ पे ये जो आपने चैनल्स बताए, ग्रेविटी, लॉज ऑफ मोशन, ये स्टूडेंट को भी विजिबल हो रहा है क्योंकि ये आपने पब्लिक कर रखा है। जो भी इस क्लास के अंदर ऐड है उनको सबको ये चैनल दिखेगा। ठीक है, लेट सपोज आपको ये प्राइवेट चैनल बनाना है। प्राइवेट मतलब कि आप नहीं चाहते कि आप चाहते हो कि आपको कुछ प्रोजेक्ट असाइन करना है अपने स्टूडेंट को, ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, या आपको कुछ चाहते हो, आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और आप चाहते हो कि सिर्फ 25 आपको उस चैनल्स के अंदर ऐड करने, बाकी 25 को आपको ऐड नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, आप प्राइवेट चैनल्स बना सकते हो। तो आप इस 3 डॉट पे जाओगे, फिर अगेन ऐड चैनल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे चैनल का नाम लिखोगे जैसे बाकियों का लिखा था आपने, ठीक है, सेम वे में आप जैसे लेट सपोज आपने प्रोजेक्ट नाम दे दिया, ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट है या कुछ भी जो भी आपको सूट्स लगे वो आप नाम दे दो। डिस्क्रिप्शन आपको ऐसे रहने देना है, इसमें कोई मैंडेटरी नहीं, ऑप्शनल है ये, ठीक है। सो इट इज ऑप्शनल, सो इफ यू वांट टू डिफाइन मोर अबाउट दिस पर्टिकुलर चैनल देन यू कैन राइट डाउन, अदरवाइज मेक इट ऑप्शनल। इसके बाद आपको इसकी प्राइवेसी सेटिंग्स पे जाना है, ठीक है। प्राइवेसी में जाके आपको इसको प्राइवेट कर देना है। पहले हमने इसको एज इट इज रहने दिया था, तो ये पब्लिक था, एक्सेसिबल टू एवरीवन था, इसलिए हमने क्रिएट कर दिया था। बट इन केस ऑफ प्राइवेट, अगर आपको इसको प्राइवेट करना है तो आपको प्राइवेट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अब आपको ये पूछेगा कि उस क्लास में से, ये क्लास 6 जो बनी हुई है, इसमें से आप कौन कौन से स्टूडेंट इसमें ऐड करना चाहते हो, ठीक है। तो उन्हीं को ये चैनल विजिबल होगा और सबको नहीं होगा। तो इस चैनल में, इस क्लास में 4 स्टूडेंट है, लेट सपोज मैंने उनमें से 4 में से सिर्फ 2 को ऐड किया, ठीक है, मैंने और किसी को ऐड ही नहीं किया। इन दोनों को मैं चाहती हूँ कि इन दोनों इस प्रोजेक्ट पे काम करें, बाकी ना करें, और बाकी को दिखे ही ना ये वाला चैनल। तो ये देखिए, इन दोनों को मैंने अंतरा और प्रीति को ऐड किया है। तो अगर मैं दीप सक्सेना, मेरा जो स्टूडेंट है, उसके लॉगिन पे देखूँ तो देखिए वो प्राइवेट चैनल उसको विजिबल ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए उसको ये सारे 2 चैनल विजिबल हो रहे हैं, बट वो प्रोजेक्ट ए वाला इसको विजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। वो सिर्फ उन दोनों को विजिबल होगा, दो अंतरा और प्रीति को जो मैंने ऐड किया उन दोनों को विजिबल होगा। और देखिए यहाँ पे लॉग भी लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्राइवेट चैनल बना सकते हो और वो असाइन कर सकते हो, सो दैट आप उन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाओ जिनको उसमें ऐड किया हुआ है। आप इस तरीके से आप प्राइवेट चैनल, और सिर्फ आप ही बना सकते हो, स्टूडेंट के पास ही राइट्स नहीं होता। तो एज ए फैकल्टी यू कैन क्रिएट द प्राइवेट चैनल इन योर क्लास, राइट। सो दिस वे, तो आपको उसको कैसे यूज करना है वो आपकी कॉल है, बट इस तरीके से आप प्राइवेट चैनल बना सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपको चैनल्स क्रिएट करने का ऑप्शन। तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बता दिया है। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आपको टीम्स डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है। उसके लिए आपको मैंने ये भी बताया कि आपको teams.microsoft.com/download पे जाना है, ठीक है। उस पर आपको वो URL है वो आपको यूज करना है, उससे ओपन करना है, फिर आपको टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। देन यू हैव टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हो, तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। इफ यू आर यूजिंग मैक फोन देन यू कैन गो टू द एप्पल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, राइट। वहां से आपको टीम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ये आपका पहला स्टेप है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि टीम्स के अंदर कौन कौन से वॉट एवर द टूल्स और टूल्स अवेलेबल इन द टीम्स, राइट। सो ये आपको बताया था मैंने, एक्टिविटी, चैट, असाइनमेंट और कैलेंडर है, यहाँ पे ये यूज करेंगे हम। और मैंने आपको बताया कि इस तरीके से आपकी क्लास बनी रहेगी। आपको इस क्लास के अंदर जाना है, इसके अंदर जनरल चैनल आपको बाय डिफॉल्ट मिलेगा, उसके अंदर पोस्ट होता है, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपको स्टूडेंट को देनी है वो अब यहाँ पे आप पोस्ट करोगे। फाइल के अंदर आप फोल्डर बनाओगे, ठीक है। अगर आपको ये देखना है यहाँ पे कितने स्टूडेंट है तो आप मैनेज टीम्स पे जाओगे, ठीक है। ऑनर्स के अंदर आपको फैकल्टी दिखाई देंगे और मेंबर्स एंड गेस्ट के अंदर आपको स्टूडेंट दिखाई देंगे। अगर आपको और मेंबर इसमें ऐड करने हैं तो आप ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे और यहाँ पे जाके यहाँ पे स्टूडेंट को आप ऐड करोगे। इसके अंदर जाके आपको स्टूडेंट और टीचर्स का टैब दिखाई देगा, उसमें जाके आप दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। तो ये आपका पहला स्टेप है जो आपको करना है। देखिए स्टूडेंट और टीचर विजिबल हो रहा है, तो इसमें जाके आप स्टूडेंट का नाम टाइप करोगे और ऐड पे क्लिक करोगे तो वो स्टूडेंट आपके ऐड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि हम चैनल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वो मैंने आपको बताया। ऐड चैनल पे जाके आपको नाम देना है, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। अगर आपको पब्लिक बनाना है तो इसको मत वो करिएगा एडिट। अगर आपको प्राइवेट बनाना है तो आप यहाँ पे जाके प्राइवेट पे क्लिक करेंगे और देन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप चैनल मतलब चैप्टर वाइज डिवाइड कर रहे हैं अपनी क्लास को, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटी, इस तरीके से। तो ये सारी चीजें हमने देखी अभी। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज चैट पे टाइप करिए, ठीक है। तो क्योंकि ये बेसिक चीजें आपको करनी है क्लास के अंदर, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक है टीम्स के अंदर जो आपको करना है। एडवांस हम बाद में कवर करेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है। तो ये करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब ये क्लास क्रिएट हो गई है, हमने इंपॉर्टेंट अपडेट भेज दिए, हमने फाइल वगैरह क्रिएट कर दी, सब कुछ कर दिया। अब हमें देखना है कि हमें मीटिंग कैसे रखनी है, स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है,
ठीक है, तो उसके लिए आपको कैलेंडर पे जाना है। ठीक है, कैलेंडर पे जाके आपको ये देखिए यहाँ पे आपको राइट जो कैलेंडर है उस पे आपको टाइम दिख रहा है, आपको यहाँ पे डेट दिख रही है, राइट। सो हियर यू कैन असाइन, तो जो भी आपको टाइम टेबल मिलता है फ्रॉम योर डिपार्टमेंट उसके अकॉर्डिंग आपको मीटिंग शेड्यूल करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो व्हाट यू कैन फॉलो हियर, आप देखिए यहाँ पे मैंने कितनी सारी मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल की हुई है। जब भी मैंने सेशन दिया है तो मैंने मीटिंग ऑलरेडी शेड्यूल करके रखी थी, तो वो सारी यहाँ पे विजिबल हो रही हैं, आप देख सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये कितनी सारी मीटिंग्स हैं। तो ये हम देखेंगे कि हम ये मीटिंग सेटअप कैसे करेंगे और इसका क्या जो है किस तरीके से हम क्लास को स्टूडेंट को कॉल करेंगे इस मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो ये करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस न्यू मीटिंग का जो राइट हैंड साइड में जो ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स के अंदर उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो आप ये क्लिक करिएगा प्लस न्यू मीटिंग। ठीक है, इसको करने के बाद आपको यहाँ पे इस मीटिंग मतलब जो भी क्लास आप लेने जा रहे हो स्टूडेंट के साथ डायरेक्टली ऑनलाइन, ठीक है, तो उस क्लास का नाम या जो भी चैप्टर आप जिस चैप्टर से रिलेटेड क्लास लेने जा रहे हो उस चैप्टर का नाम आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास टाइम टेबल है कि मुझे साइंस की क्लास लेनी है फ्रॉम 2 to 3 ऑन एवरी डे ऑन दिस वीक। इस वीक का टाइम टेबल है मेरे पास कि मुझे 2 से 3 बजे के बीच में साइंस की क्लास लेनी है, तो मुझे पता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे साइंस क्लास लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे अब आते हैं हम यहाँ पे टाइम्स के अंदर, तो यहाँ पे आई नो कि व्हाट इज द टाइम। तो मुझे फ्राइडे से नहीं, मुझे मंडे से, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स आई कैन टेक दिस क्लासेस फ्रॉम 2 to 3। तो यहाँ से मैं टाइमिंग 2 से 3 1 घंटे की क्लास मुझे लेनी है, तो वो मैं सेलेक्ट कर दूंगी। तो जो भी आपके पास टाइम टेबल होगा, अभी मैंने आपको सिर्फ बताया है, इस तरीके से आप करेंगे। बट वॉट एवर टाइम टेबल यू हैव यू कैन सेलेक्ट द डेट। अगर जून का टाइम टेबल है तो जून से आप जो भी डेट है वो आपको विजिबल हो रही है, वो डेट को आपको सिंपल सेलेक्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से, और देखिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी कोई और जुलाई की डेट है तो आपको इस पे नेक्स्ट मंथ पे क्लिक करना है। देखिए आपको ये ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है, जो इस पे क्लिक करना है तो आपको ये नेक्स्ट मंथ का कैलेंडर दिख जाएगा और उस पे जाके आपको जो है करना है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, ये आपकी जो है वो आ गया। अब आपको टाइम सेलेक्ट करना है, तो टाइम भी 24 आवर्स का अवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से आपको जो भी टाइम आपके टाइम टेबल में मेंशन है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके वो कर सकते हैं, और यहाँ पे एंड टाइम दे सकते हैं कि एंड टाइम आपके क्या है। एक चीज़ और है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर कि अगर आप एंड टाइम 3 दे भी देंगे और आपकी क्लासेस देर तक पोस्टपोन हो रही है, खत्म नहीं हुई है, कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली एंड नहीं होती मीटिंग, आप खुद करोगे तभी वो एंड होगी, राइट। तो इस तरीके से आप वो क्लास एंड टाइमिंग भी दे दोगे इसके अंदर। उसके बाद आपके पास जो ये नेक्स्ट ऑप्शन है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोचिए, आप रेगुलर आ रहे हो, आप रोज आ रहे हो, आप रोज ये क्लास का नाम दे रहे हो, यहाँ पे जो भी क्लास आपको लेनी है आप टाइम सेट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैनुअल टास्क हो जाता है। अगर आप इस टास्क को ऑटोमेट हो जाए, मतलब कि आपको बार बार मीटिंग कैलेंडर के अंदर ना आना पड़े, आपने एक बार ये मीटिंग सेट करी और आपने पूरे वीक के लिए कर दी, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा आसान होगी, राइट। सो व्हाट यू कैन डू हियर, यू कैन सी does not repeat means this meeting is not going to repeat, this is only applicable for today, right, it will not carry forward to tomorrow, right. So this mean does not repeat means it is just for today only। अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करवाना चाहते हो वो पूरे वीक के लिए, तब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आपको देखो यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एवरी वीकडेज मंडे टू फ्राइडे। अगर आप इस पे क्लिक कर दोगे तो ये मीटिंग मंडे टू फ्राइडे तक के लिए शेड्यूल हो जाएगी फ्रॉम 2 to 3। ये कैलेंडर आपका, हम कहते नहीं कैलेंडर बुक कर लिया मैंने, इसका मतलब ये है कि ये मीटिंग आपकी फिक्स हो गई है 2 से 3 के लिए ऑन एवरी मंडे टू फ्राइडे इस वीक के लिए। अगले वीक आपको फिर से करनी पड़ेगी, इस वीक के लिए आपकी फिक्स हो गई है। तो ये क्या, आपको बार बार आपको ये नहीं ध्यान रखना है कि अरे मैंने मीटिंग शेड्यूल नहीं की, मुझे करनी है, ऐसा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपकी ये फिक्स हो गई है, सबको नोटिफिकेशन चला गया है। ठीक है, लेट सपोज आपको ये क्लास सैटरडे संडे तक भी रखनी है। ठीक है, आपकी सैटरडे संडे, क्योंकि आजकल घर से चल रही है तो सैटरडे संडे भी कई बार फैकल्टी ले लेते हैं क्लासेस, तो अगर आपको डेली रखनी है तो आप इस पे डेली पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एवरी वीकडेज में मंडे टू फ्राइडे था, बस सैटरडे संडे इंक्लूडेड नहीं था, तो आप डेली कर लोगे। ठीक है, आप डेली पे क्लिक कर लोगे, आप वीकली पे क्लिक कर लोगे। ठीक है, ऑकर एवरी फ्राइडे स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। ठीक है, तो वीकली भी कर सकते हो आप, मंथली पूरे मंथ के लिए आप एक क्लासेस शेड्यूल कर सकते हो। आपको मंथली पूरे, मतलब अगर 30 डेज हैं मंथ में तो 30 डेज के लिए शेड्यूल हो जाएगी, आपको करनी नहीं पड़ेगी दोबारा।
ये भी कर सकते हो। ईयरली का भी ऑप्शन है, पूरे साल के लिए भी शेड्यूल कर सकते हो, हर दिन पूरे साल में आपकी क्लास शेड्यूल हो जाएगी। तो ये ऑप्शन है आपके पास। कस्टमाइज का भी ऑप्शन है। कस्टमाइज पे आप देखिए यहाँ पे कब रिपीट हो, रिपीट एवरी ऑन द सेकेंड डे, एंड डेट, इस तरीके से आप ऑल्टरनेट डे पे कर सकते हो। जैसे कि आप समझो कि आपकी क्लास जो है वो ऑल्टरनेट जैसे मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे होती है, तो आप यहाँ पे रिपीट एवरी 2 डेज कर दोगे। तो इस तरीके से आपकी और एंड डेट डाल दोगे तो वो आपकी वीक में 2 बार ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस शेड्यूल हो जाएगी, राइट। बट इस केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो ऑटोमेट आपको करना है इसमें आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आपका टाइम डिफरेंस है, अगर आप आज क्लास ले रहे हो 2 से 3, कल आपको पता नहीं कब लेनी है, मतलब कल 4 से 5 भी हो सकती है, सुबह 9 से 10 भी हो सकती है, उस केस में आप ऑटोमेट नहीं कर पाओगे। उस केस में आपको रेगुलर आके मीटिंग शेड्यूल करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऑटोमेट तभी होगी जब आपका टाइम फिक्स होगा। आपका टाइम 2 से 3 है तो 2 से 3 ही रहना चाहिए पूरे ग्रुप में, तभी आप इसको जो है फिक्स आपकी मीटिंग ऑटोमेट कर पाओगे, राइट। सो दैट्स हाउ यू कैन ऑटोमेट द मीटिंग। सो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ every weekdays Monday to Friday, right? Then I am not going to, this is basically automate my meeting and this will carry forward to whole week from my, like today is Thursday, so it will carry forward to Friday till Friday, right? अगर मैंने थर्सडे को शेड्यूल करी है तो ये फ्राइडे तक के लिए ऑटोमेट होगी। मंडे को मुझे नहीं शेड्यूल करनी पड़ेगी, तो मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए पूरे वीक की मीटिंग शेड्यूल हो जाएगी, राइट। अब नेक्स्ट पार्ट को इम्पोर्टेंट पार्ट ये आता है कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को कॉल करने हैं। अब ये मीटिंग में हमने क्लास नेम लिख दिया, टाइम लिख दिया, ऑटोमेट भी कर ली। अब हम इसमें स्टूडेंट को कैसे कॉल करें इस मीटिंग के अंदर, तो हमें स्टूडेंट की ईमेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डायरेक्टली उस क्लास का नाम लिखेंगे जो क्लास हमारे पास है, ठीक है। इस तरीके से इस क्लास को सिलेक्ट करिए, इसका जो सबसे पहला चैनल है जनरल, उसको सिलेक्ट करिए। तो ये जो क्लास है आपकी पूरी की पूरी, इस क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इस मीटिंग के अंदर कॉल हो जाएंगे, उनको नोटिफिकेशन चला जाएगा। इसी वजह से हमने वहाँ पे क्लास बनाई थी अपनी, ताकि हमें बार बार आके ईमेल एड्रेस ना लिखना पड़े स्टूडेंट का, हम डायरेक्टली उस क्लास को कॉल करें और वो क्लास के जितने भी बच्चे उसके अंदर है उन सबको ये इनवाइट चला जाए, राइट। तो इस वजह से हमने क्लासेस बनाई थी। अब यहाँ पे जाके आप एजेंडा जो भी क्लास के अंदर आप पढ़ाने चाहते हो, ऑप्शनल है ये, डिपेंड मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शन है। ये सारी फील्ड मैंडेटरी होती है, इसलिए मैंने आपको बताई। ये यहाँ पे आप जैसे मीटिंग के अंदर आप क्लास के अंदर कुछ एजेंडा है इंपॉर्टेंट जो आप लिखना चाहते हो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि आप साइंस के अंदर क्या पढ़ाने जा रहे हो, आप चैप्टर का डिटेल्स क्या पढ़ाओगे, वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो आपकी कॉल है, ठीक है। नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, कोई ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, एक कॉलम मैंने आपको छोड़ दिया ऊपर ही, लोकेशन वगैरह का कोई मतलब नहीं है, ये बेसिकली उनके लिए होता है जब वो कोई मीटिंग रूम वगैरह बुक करते हैं तो वहाँ के लिए हम लिखते हैं ऐड लोकेशन। तो ये स्कूल से रिलेटेड टास्क नहीं, इसको आप लीव कर दीजिएगा, ये इसको आप ऑप्शनल ही रखिएगा, ठीक है। अब एक आता है ऑप्शन ऐड रिक्वायर्ड अटेंडीज का, तो ये क्या है, इसका क्या, ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, राइट। सो लेट्स सपोज अब आपने इस क्लास के बच्चे कॉल किए तो सिर्फ इसी क्लास के बच्चे इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाएंगे। अब आप चाहते हो कि आपकी कोई दूसरी क्लास है, ठीक है, उसके भी आपको 1-2 बच्चों को बुलाना है इस क्लास की मीटिंग में, तो आप वो कैसे बुलाओ, क्योंकि वो इस क्लास के तो पार्ट है नहीं, तो उनको तो जाएगा नहीं ये लिंक। तो आप क्या करोगे, उस ऐड रिक्वायर्ड अटेंडेंस में सिंपली उनकी ईमेल एड्रेस लिख दोगे, जो भी उनका पूरा ईमेल एड्रेस है वो आप लिख दोगे, या फिर उनका सिंपल नाम टाइप करोगे। जैसे कोई स्टूडेंट मेरे क्लास के पार्ट नहीं है तो मैं उनका सिंपल नाम टाइम, जैसे अभी ये तो पार्ट है वैसे, बट अगर कोई स्टूडेंट पार्ट नहीं है बट वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के, मेरे स्कूल के हैं, तो आप सिंपली उनका नाम टाइप करोगे तो वो पॉपअप हो जाएगा, उनको इनवाइट कर सकते हो इस तरीके से। एडिशनली मतलब किसी को बुलाना चाहते हो तो आप एडिशनली किसी को भी बुला सकते हो। इवन आप चाहो तो कोई बाहर का है पर्सन जिसको, जो आपके टीम्स के अंदर नहीं है, आपके स्कूल का पार्ट नहीं है, बट वो किसी बाहर का है, ठीक है, वो उसके पास कोई टीम्स की आईडी नहीं है, ऑफिस 365 की आईडी नहीं है उसको, लेकिन आपको पर टाइम बिंग एक क्लास के लिए आपको बुलाना है, तो आप उनकी जीमेल आईडी या याहू आईडी लिख सकते हो यहाँ पे ऐड रिक्वायर्ड अटेंडेंस के अंदर। तो उनको वो एज ए गेस्ट ज्वाइन कर पाएंगे, उनको सारी फंक्शनलिटी नहीं मिलेगी बट एज ए गेस्ट वो आपको सुन पाएंगे और खुद से बोल पाएंगे, राइट। तो आप यहाँ पे उनकी ईमेल एड्रेस लिख के उनको इन्वाइट कर सकते हो ऐड रिक्वायर्ड अटेंडेंस के अंदर। तो ये फायदा है ऐड रिक्वायर्ड अटेंडेंस का। कोई एक्स्ट्रा पर्सन बुलाना है जो इस क्लास का पार्ट नहीं है तो आप उनकी ईमेल एड्रेस लिख के उनको इस क्लास के अंदर इन्वाइट कर सकते हो फॉर वन टाइम, मतलब जितने दिन के लिए मीटिंग शेड्यूल है उतने दिन वो हर दिन आ सकते हैं अगर आपने यहाँ पे उनका ईमेल एड्रेस लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लास शेड्यूल करना। जब आप शेड्यूल कर लोगे तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या है, क्लास का टाइटल हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गई, ठीक है, रिपीट वाला ऑप्शन हो गया, क्लास का नाम हो गया, कौन सी क्लास के लिए आप इस क्लास को लेने जा रहे हो, क्लास का नाम आपने यहाँ पे दे दिया, और बस आपको इतना लिखना है और आपको सेंड पे क्लिक कर देना है ये, ठीक है।
तो सेंड पे क्लिक करने के बाद आपकी ये मीटिंग जो है वो शेड्यूल होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, 2 से 3 एवरी डे, ठीक है। ये देखिए मेरी जो ये मीटिंग है वो 2 से 3 जो है यहाँ पे विजिबल हो जाएगी अभी आने के बाद, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, ये देखिए साइंस क्लास करके शेड्यूल हो रही है, ठीक है। तो ये मेरी क्लास शेड्यूल हो गई है आज और कल के लिए 2 से 3 के बीच में, देखिए 2 से 3, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी जो क्लास है वो शेड्यूल हो गई है, साइंस क्लास यदि कैलेंडर में भी दिख रही है, ठीक है। और अगर मैं टीम्स के अंदर जाऊं, अपनी क्लास जो मैंने क्रिएट की थी उसके पोस्ट सेक्शन में जाऊं, तो ये ऑटोमेटिकली लिंक भी चला गया होगा पोस्ट सेक्शन पे। ये देखिए जैसे ही आप वहां से शेड्यूल करेंगी ऑटोमेटिकली इसका लिंक पोस्ट पे चला जाएगा, तो बच्चे डायरेक्टली इस लिंक यहाँ से उनको भी, अगर मैं स्टूडेंट के लॉगिन पे जाऊं, ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट का लॉगिन है, इस पे जाऊं तो देखिए ये दिख रहा है लिंक, तो यहीं से वो ये दीप सक्सेना स्टूडेंट है तो वो यहीं से इसको ज्वाइन कर सकता है डायरेक्टली, ठीक है। तो उसको यहीं पे लिंक सेंड हो गया, उसकी क्लास के अंदर ही सेंड हो गया, सारे बच्चों को मिल गया होगा। और उनको ये भी मिल रहा है ऑकर एवरी वर्क डे मंडे टू फ्राइडे एट 2 PM साइंस क्लास। तो इस तरीके का लिंक जो है वो ऑटोमेटिकली जो है पोस्ट वाले सेक्शन में जैसे आप क्लास शेड्यूल करोगे वो लिंक पोस्ट हो जाएगा। जब आपको क्लास लेनी हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली आप चाहो तो कैलेंडर पे जाओ, कैलेंडर से भी आप ओपन कर सकते हो जाके क्लास, नहीं जाना है कैलेंडर पे, ठीक है, तो आप कैलेंडर पे जाके भी इसको ओपन कर सकते हो। जैसे कि आपको साइंस की क्लास है, यहाँ पे गए आप, ठीक है, यहाँ पे जाके आपने इसको एक 1 क्लिक किया और यहाँ पे देखिए ज्वाइन का ऑप्शन आता है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कैलेंडर से नहीं करना चाहते तो आप लिंक से भी डायरेक्टली कर सकते हो, जो लिंक क्लास पे पोस्ट हुआ है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ज्वाइन नाउ पे क्लिक कर दिया। कैलेंडर पे शेड्यूल करने का एडवांटेज ये है कि आपको ना आपकी क्लास जब स्टार्ट होने वाली होती है उससे 15 मिनट पहले से आपको पॉपअप आने लगेगा कि आपकी क्लास है 10 बजे से, आपकी क्लास है 2 बजे से, तो बी रेडी, इस तरीके का पॉपअप आने लगेगा, स्टूडेंट को भी आने लगेगा और आपको भी आने लगेगा, इसलिए हम क्लास शेड्यूल कर देते हैं पहले से, ठीक है। तो देखिए मैं इस क्लास के अंदर चली गई, ठीक है। तो इस क्लास के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मुझे ये इस तरीके का एक टूल बार मिलेगा जिसके अंदर हम देखेंगे, जिसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि हमारी जो मीटिंग चल रही है करंट, उसके अंदर भी आपको ऐसे टूल बार मिलता है जब हमारी जो सुबह मीटिंग हुई थी उसमें, ठीक है। तो इसमें देखिए शो पार्टिसिपेंट पे जाएंगे तो आपको इसके अंदर पार्टिसिपेंट की लिस्ट मिल जाएगी पूरी, कितनों लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट। शो पार्टिसिपेंट, ये देखिए यहाँ पे जो सिंबल इस तरीके का पार्टिसिपेंट का सिंबल भी दिख रहा है इस तरीके से ना, तो इस तरीके से आप जब जाओगे तो यू कैन व्यू ऑल द पार्टिसिपेंट इन योर मीटिंग, राइट। सो अभी देखिए मैंने सिर्फ ज्वाइन किया है, वंस द स्टूडेंट इज गोइंग टू ज्वाइन दे यू विल सी ऑल द पर्सन इन दैट मीटिंग, राइट। तो इस तरीके से आप शो पार्टिसिपेंट में जाके सब बच्चों को देख सकते हो, कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, कितने बच्चों ने ज्वाइन किया है, राइट। एंड वन मोर थिंग विच इज इम्पोर्टेंट इन द पार्टिसिपेंट लिस्ट इज यू कैन डाउनलोड द अटेंडेंस फ्रॉम द पार्टिसिपेंट लिस्ट। हाउ? You just see the 3 dots here, you can click on the 3 dot and click on download attendance list, right. So once you click on download attendance list will be downloaded in Excel file format, ठीक है। तो उस एक्सेल के अंदर स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड होंगे, कौन सा स्टूडेंट ने कब ज्वाइन किया, कितने बजे ज्वाइन किया, अगर किसी स्टूडेंट ने लेट ज्वाइन की, ये क्लास 2 बजे से थी, उसने 2:15 पे ज्वाइन की या 2:16 पे ज्वाइन की, ऑल दैट थिंग हैज बीन कैप्चर्ड इन दैट पर्टिकुलर अटेंडेंस लिस्ट, ठीक है। तो वो एक्सेल फॉर्मेट में अगर, और एक चीज और है, कोई स्टूडेंट ने 2 बजे ज्वाइन किया और 2:30 पे वो रिमूव हो गया, वहां से निकल गया क्लास से, और क्लास थी 3 बजे तक के लिए, वो भी चीज कैप्चर हो जाएगी। तो इस अटेंडेंस लिस्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन कैप्चर होती है। तो आपको ये यहाँ पे शो पार्टिसिपेंट लिस्ट में जाके आपको ये अटेंडेंस जो है वो व्यू होगी, वो आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हो। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि लेट सपोज आपने ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, आप ऑर्गेनाइजर हो इस मीटिंग के, तो आप ही इसको डाउनलोड कर सकते हो, स्टूडेंट के पास राइट्स नहीं है। और अगर आपका कोई को फैकल्टी है जो आपको इस मीटिंग को ले रहा है, आपने उसको राइट दिए, तो उसके पास भी राइट नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइजर ही इसको डाउनलोड कर सकता है, राइट। और अदर कोई पर्सन इसको डाउनलोड नहीं कर सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मीटिंग ऑर्गेनाइजर कैन ओनली डाउनलोड दिस अटेंडेंस लिस्ट, राइट। तो ये आपका आ गया अटेंडेंस लिस्ट का चीज। अच्छा, यहाँ पे आपका देखिए शो कन्वर्सेशन आ रहा है। तो मीटिंग के अंदर अगर आपको कुछ पोस्ट करना है, कोई क्वेरी लिखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देने हैं, तो चैट विंडो होता है मीटिंग्स के अंदर, जिस पे आप कर सकते हो, ये सारी चीजें पोस्ट कर सकते हो। तो ये जो भी मीटिंग के पार्टिसिपेंट होंगे उनको ये चैट ऑप्शन विजिबल होता है, आपको भी विजिबल हो रहा है। जैसे कि आपको हमने कहा कि कोई क्वेरी है तो आप राइट डाउन करो, वैसे ही यहाँ पे आपको वो क्वेरी भी विजिबल होगी, राइट। अच्छा, उसके बाद आता है रेज हैंड। तो रेज हैंड आपके भी फंक्शनलिटी है। अगर आपके पास राइट्स नहीं है कि आपका माइक अनम्यूट आप नहीं करना चाहते, आप सेशन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो आप ये रेज हैंड वाला फीचर यूज कर सकते हो। तो इस पे जो है इस तरीके से रेज हैंड वाला जो है कॉलम, ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा। दैट मीन्स कि यू हैव सम क्वेरी,
So once the faculty finish their lecture, they will address your query later on after finishing the lecture. तो आप ये बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप रेज हैंड पे क्लिक करें, तो जब मैं फिनिश कर लूंगा देन आई विल टेक योर क्वेरी, राइट. दिस वे ये फंक्शनलिटी वर्क करता है. उसके बाद यहाँ पे आपका कैमरा और माइक का ऑप्शन है, जो बाय डिफॉल्ट आपको बच्चों से भी ये कहना है कि ऑफ रखें. अगर कोई नीड होगी देन यू कैन आस्क हिम और हर टू on the camera and on the mic. Why? Because what is going to happen, it will consume more bandwidth when you ask the student to on the camera, right? So that's why you can first of all you can ask to off the camera. Once it required then you can ask to on the camera. माइक के केस में आपको पता है माइक तो अगर वो ऑन रखेंगे तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस आएगी, तो इसलिए माइक को भी आपको ऑफ ही रखना है. ठीक है, माइक के लिए भी आपको ऑफ के लिए कहना है. उसके बाद आपको ऑप्शन आता है, इस 3 डॉट पे आप जाओगे तो आपको ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का. ठीक है, तो आप इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर सकते हो. इस 3 डॉट पे जाके आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे तो आपकी क्लास रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी. और रिकॉर्ड होने के बाद अगर आपने इसको, जब आपकी क्लास खत्म होती है तो आपको यहाँ पे जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देना है. ठीक है, और नहीं स्टॉप रिकॉर्डिंग की तो आपको डायरेक्टली एंड भी कर सकते हो आप. तो आपकी जो रिकॉर्डिंग होगी वो ऑटोमेटिकली क्लास के अंदर पोस्ट हो जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है आपका रिकॉर्डिंग वाला फंक्शनलिटी. आपको इसको आपकी क्लास के अंदर डायरेक्टली रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड हो जाएगी. जो भी आपने पढ़ाया है, जो भी आपने करा है, आपकी क्लास के अंदर फॉरवर्ड हो जाएगी. अगर कोई स्टूडेंट मिस कर गया, नहीं आ पाया योर आपके क्लास के अंदर, तो उसको रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी क्लास के अंदर, तो वो वहाँ से सुन सकता है, राइट. तो ये देखिए आपकी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई, तो यहाँ से आप चाहो तो स्टॉप भी कर सकते हो इसको. ठीक है, इस तरीके से स्टॉप करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, राइट. देखिए रिकॉर्डिंग इज बीइंग सेव्ड. तो जब ये क्लास के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होती है, तो आपकी क्लास के अंदर ही डायरेक्टली सेव हो जाती है और 21 डेज के लिए वो वहीं पे रहती है. 21 डेज के बाद वो वैनिश हो जाती है, राइट. तो इस तरीके से ये रिकॉर्डिंग हो गया. उसके बाद आता है कि आप अगर आपको आपके स्क्रीन के अंदर कुछ दिखाना है बच्चों को, जैसे मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखा रही हूँ, राइट, जो भी चीज़ें चल रही हैं, तो आप भी यहाँ पे ये देखिए शेयरिंग स्क्रीन का ऑप्शन होता है. तो आप यहाँ पे जाके अपनी पूरी की पूरी सिस्टम डेस्कटॉप शेयर कर सकते हो. तो जो भी आपके सिस्टम पे ओपन है, जैसे मेरे सिस्टम पे देखिए सारी चीज़ें ओपन है, ये सब आपको दिख रही है. सेम वे यू कैन शेयर योर स्क्रीन विद योर स्टूडेंट एंड वॉट एवर यू हैव ओपन इन योर सिस्टम इट विल बी विजिबल टू स्टूडेंट. आइदर यू कैन ओपन पावर पॉइंट, यू कैन शेयर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और अगर आपने कोई बुक PDF फॉर्मेट में खोल रखी है तो आप इस तरीके से आप स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो. और एक शेयरिंग स्क्रीन के अंदर ही एक इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी है व्हाइट बोर्ड की, वो आपको यहाँ पे दिखेगी, माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड. अगर आप व्हाइट बोर्ड पे कोई चीज़ पढ़ाना चाहते हो बच्चों को, ठीक है, तो वो भी फंक्शनलिटी है इस शेयरिंग स्क्रीन के अंदर. तो आपको माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड को चेक करना है. तो ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा टाइम लेता है, 5-10 मिनट्स टू लोड इनटू दैट टीम्स विंडो. व्हाइट बोर्ड आपका इस तरीके से लोड हो जाएगा. ठीक है, तो आप व्हाइट बोर्ड के अंदर भी स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो, और ये व्हाइट बोर्ड आपको स्टूडेंट को भी दिखेगा उनके एंड पे. ठीक है, तो इस व्हाइट बोर्ड के अंदर काफ़ी कुछ मार्कर फैसिलिटी है, आप राइट डाउन कर सकते हो. अभी कुछ एरर आ रहा है उसमें. ठीक है, तो लेट इट बी लोडेड. समटाइम्स कुछ मैंने एक जगह पे और ऑन कर रखा था, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग द एरर. ठीक है, तो बट आपके केस में नहीं आएगा, आप ट्राई करना फर्स्ट टाइम पे. ठीक है, तो आप व्हाइट बोर्ड को यूज़ कर सकते हो. यहाँ पे आपको इसके अंदर पेन वगैरह, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, देखिए खुल गया व्हाइट बोर्ड. ठीक है, तो अभी मैं इसको कोलैबोरेट नहीं कर रही. कोलैबोरेट मतलब कि आप स्टूडेंट को भी राइट्स दे रहे हो कि इसके अंदर वो भी लिख सके. तो अभी सिर्फ मैंने अपने आप को राइट्स दिया है. ठीक है, यहाँ पे जो ये 2 ऑप्शन आपको, जब भी आप व्हाइट बोर्ड यूज़ करोगे ना, तो आपको ये 2 ऑप्शन पूछेगा. फिर तो आपको सिर्फ प्रेजेंट व्हाइट बोर्ड पे क्लिक करना है इस तरीके से, राइट. इस तरीके से क्लिक करना है और आपको वो व्हाइट बोर्ड आपका ओपन हो जाएगा. ये देखिए आपका व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, राइट. तो यहाँ पे देखिए आपका ये पेंसिल है, ये डिफरेंट कलर ऑप्शन है. ठीक है, ये रेजर है, ये टेक्स्ट बॉक्स है. यहाँ पे जाके टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करिएगा तो टेक्स्ट बॉक्स एंड यहाँ पे जाके आप टेक्स्ट लिख सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे आप रेजर पेन वगैरह यूज़ कर सकते हो. तो ये आपका जो व्हाइट बोर्ड है, ये आप इसको यूज़ कर सकते हो, और सेम चीज़ स्टूडेंट को भी विजिबल होगी उनके एंड पे. ठीक है, और ये गियर बटन है, इस पे जाके अगर आप इसको व्हाइट बोर्ड पे आपने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बना दिए समथिंग, वो आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हो एज ए इमेज, तो आप यहाँ पे जाके व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट इमेज. तो ये व्हाइट बोर्ड एज ए इमेज आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा. तो आप इसको रख सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो. ठीक है, तो इस तरीके से व्हाइट बोर्ड की आप सेटिंग्स पे जाके देख सकते हो. अब अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हो प्रेजेंट,
तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। तो डिफरेंट पेन और मार्कर ऑप्शन है, जो भी आप इसमें से यूज़ करना चाहते हो यूज़ करके स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और जब आपको स्टॉप प्रेजेंटिंग करना है तो आपको होवर करना है नीचे आके लेफ्ट हैंड साइड पे, आपको स्टॉप प्रेजेंटिंग का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको स्टॉप कर दोगे तो व्हाइट बोर्ड जो है वो स्टॉप हो जाएगा प्रेजेंट होने से। और ये कहाँ पे आता है व्हाइट बोर्ड, ये शेयरिंग विंडो के अंदर आप क्लिक करोगे तो ये देखिए राइट हैंड साइड पे आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई देगा, राइट। तो इस तरीके से आप व्हाइट बोर्ड को भी यूज कर सकते हो अपने मीटिंग्स के अंदर। तो ये मीटिंग की बेसिक चीजें थी जो आप यूज कर सकते हो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस था, जो आप शो पार्टिसिपेंट पे जाके, ठीक है, क्लिक ऑन शो पार्टिसिपेंट हेयर एंड यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके अटेंडेंस डाउनलोड कर सकते हो, स्टूडेंट की एक्टिविटी देख सकते हो, ठीक है। कैमरा और माइक वगैरह यहाँ से आप ऑन ऑफ करवा सकते हो, चैट करवा सकते हो, रेज हैंड करवा सकते हो, 3 डॉट में जाके रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से, बट एक चीज़ आपको याद रखनी है इसके अंदर कि आपका जो ये जो अटेंडेंस लिस्ट है वो आपको मीटिंग एंड करने से पहले ही डाउनलोड कर ली है। अगर आपने मीटिंग एंड कर दी और आपने इसको डाउनलोड नहीं किया तो आपके पास कोई वे आउट नहीं है इसको दोबारा से अटेंडेंस निकालने का। हमारे पास थर्ड पार्टी हमारे पास एक एप्लीकेशन है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट अभी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको इसको एंड रेड बटन दबाने से पहले आपको ये अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है, अदरवाइज आपको ये मिलेगी नहीं, राइट। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है इस मीटिंग के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मीटिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर इसके रिलेटेड भी आपको कोई डाउट है तो आप इसको चैट विंडो में लिख सकते हैं और उसके बाद हम लोग इस पर आपको रिप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी मैं इस वाली अपनी मीटिंग नहीं, इस जो डेमो हमने खोली इसको मैं एंड करती हूँ, तो आपको मैं दिखाती हूँ कि ये इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो कहाँ पे शेयर होगी। तो ये देखिए इस क्लास में हमने मीटिंग रखी थी, इसी क्लास के अंदर नीचे देखिए रिकॉर्डिंग शेयर हो गई और ये 21 डेज के लिए यहीं पे वैलिड रहेगी। तो स्टूडेंट यहाँ से जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली पोस्ट सेक्शन पे पोस्ट हो जाती है रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये ब्यूटी है रिकॉर्ड करने का, इसको रिकॉर्ड करने का अपना वेबिनार, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया। हमने देखिए टीम्स कवर कर लिया, क्लासेस कैसे क्लासेस में लॉगिन करते हैं, कैसे क्लासेस लेते हैं, कैसे फाइल्स पे यूज़ करते हैं, कैसे मीटिंग शेड्यूल करते हैं, कैसे मीटिंग्स के अंदर जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली। अब हम देखते हैं कि हमने असाइनमेंट को यूज़ कैसे करना है, ठीक है। असाइनमेंट का पार्ट हमें कैसे यूज़ करना है, असाइनमेंट पे हमने कैसे क्रिएट करना है, वो हम एक चीज़ देख लेते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए यूज़फुल रहेगा। और एडवांस ऑप्शन जो है वो हम लोग बाद में जो भी सेशन होगा उस पर हम देखेंगे। तब तक आप लोग जो भी मैंने बताया है आप लोग वो प्रैक्टिस करें, क्योंकि तभी आपको ये बेसिक चीज़ें टीम्स के अंदर आपको ये सब चीज़ें करने आ गई, तब आप एडवांस ऑप्शन पे जा सकते हो टीम्स पे, ठीक है। तो हम लोग अभी कैलेंडर एक बार असाइनमेंट देख लेते हैं कि हमने असाइनमेंट पे कैसे काम करना है। तो आप क्लास के अंदर जाएंगे सेम वे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए पोस्ट फाइल हमने कवर कर दिया। अब नेक्स्ट आता है असाइनमेंट। तो असाइनमेंट के पेज पे जब भी आप जाएंगे तो आपको देखो ये आएगा पेज लिख के वेलकम टू असाइनमेंट, राइट। तो इस पे आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्रिएट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहीं पे आपको क्रिएट पे क्लिक करना है, ठीक है। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपका ये असाइनमेंट क्विज ये सारा ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्विज को कवर कर रही हूँ, उसके बाद कभी और सेशन होगा तो आई विल कवर असाइनमेंट ऑल्सो, ठीक है। तो क्विज पे आपको क्लिक करना है। क्विज पे क्लिक करने के बाद आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्म होता है जो ऑफिस 365 के पैकेज के साथ ही आता है, तो फॉर्म्स पे आप एक असाइनमेंट मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन या कोई भी क्वेश्चन आप सेट कर सकते हो इस फॉर्म पे। बस आप ये समझ लो इस फॉर्म का यूज जो है। तो ये फॉर्म जब वो एक बार आ जाए ये विंडो, तब आपको मैं दिखाती हूँ ये फॉर्म कैसा है, और इसके बारे में थोड़ा बहुत सुबह भी बताया था, बट अगेन वी कैन सी हाउ वी कैन यूज दिस माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से करती हूँ, क्रिएट क्विज, राइट, let it be loaded, let me refresh the Microsoft Teams.
आपको असाइनमेंट पे जाना है, ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करना है, फिर आपको क्विज पे जाना है, ओके। सो देखिए ये खुल गया फॉर्म। तो जितने भी मैंने पहले फॉर्म्स बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। तो ये मेरे पहले से क्रिएटेड है, बट आपको अगर नया क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो आपको न्यू क्विज पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप न्यू क्विज पे जाइएगा, तो ये देखिए आपका न्यू क्विज यहीं पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ये क्विज का जो है टाइटल वगैरह आप क्वेश्चन पेपर के अंदर ही दे सकते हो। लेट सपोज आप कोई टेस्ट पेपर करने जा रहे हो, टेस्ट पेपर जनरल नॉलेज का ही है, कुछ भी लिख दो आप, जो भी आपका साइंस से रिलेटेड हो, इंग्लिश से रिलेटेड हो, वो आपकी आप देख लेना। यहाँ पे आप टाइटल लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। फिर आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में और लिख सकते हो क्या है ये टेस्ट पेपर, इसको और डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। ये राइट हैंड साइड पे थीम्स आती है। थीम्स मतलब कि इसका जो बैकग्राउंड है ना, लुक एंड फील आप थोड़ा चेंज करना चाहते हो तो थीम्स पे जाइएगा, ठीक है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द थीम्स विच इज अवेलेबल, सो आई कैन चूज दैट थीम्स, सो हाउ इट विल लुक बेटर, राइट। सो अगर आपको देखना है कि कैसा दिख रहा है तो आप प्रीव्यू पे जाइएगा, देन इट विल आस्क कंप्यूटर में और मोबाइल में। तो कंप्यूटर में ये इस तरीके से विजिबल होगा, एंड इन द मोबाइल फोन इट विल लुक लाइक दिस वे, ठीक है। तो ये बोथ वे में आपको प्रीव्यू में दिखा देगा कि कैसे ये दिखेगा, ठीक है, राइट। तो बैक जाते हैं, तो इस तरीके का ये लुक दिखेगा आपका क्वेश्चन पेपर। अगर आपको क्वेश्चन एंटर करना है तो आपको ऐड न्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि आपको कैसा क्वेश्चन एंटर करना है, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस बेस एंटर करना है, या आप चाहते हो कि स्टूडेंट उसमें राइट डाउन करे, या आप चाहते हो कि वो रेटिंग वाइज हो। रेटिंग वाइज मतलब आपने 4 स्टार 4 स्टार ऑप्शन दे दिया, उस तरीके का हो। या स्टूडेंट, जैसे आप हिस्ट्री टीचर हो तो आप चाहते हो कि उस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट सिर्फ डेट ही एंटर करे, राइट, और कोई डेट को ही एंटर करे और कोई उसका ऑप्शन ही ना हो, एंटर करने का अलाउड ही ना हो, तो आप डेट वाला कॉलम चूज करोगे। इसके अंदर और भी सारे ऑप्शंस हैं, तो वो हम लोग अभी नहीं देखते, वो थोड़ा सा आप जब इस पे कॉपअप हो जाओगे तब हम उसको देखेंगे, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर। बट आप ट्राई कर सकते हो। लिंकड है, जैसे टाइम लिंकड का मतलब ये होता है कि आप जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चन देना चाहते हो, तो इस तरीके का देखिए आपका ऑप्शन दिखता है यहाँ पे, ये देख सकते हो। यहाँ पे वो मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं होता, उस तरीके का है ये लिंकड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट दे सकते हो क्वेश्चन का, और यहाँ पे ऑप्शंस दे सकते हो कि कौन सा उसका करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो इस तरीके का आप दे सकते हो, तो ये आप ट्राई कर सकते हो मोर ऑप्शन। तो अभी हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस बेस्ड। तो मैं एक चॉइस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे चॉइस करती हूँ, और यहाँ पे मैं लिखती हूँ, लेट सपोज एक क्वेश्चन ये कि व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ जर्मनी, ठीक है, इस तरीके का मैंने लिखा। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन दे रही है, लेट सपोज इटली, ठीक है। और देखिए यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता रहता है कि आपको कौन सा ऑप्शन आपको लेना है, ठीक है। तो वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो आपको ये जो है पॉपअप करेगा आपको ये ऑप्शंस, ठीक है। आप और भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से, आप और भी ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन 4 लिख के आप यहाँ पे ऑप्शन और ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने वाई ऐड कर दिया, लेट सपोज। तो इस तरीके से आपका ये चॉइस दो, और जो भी इसका आंसर राइट है उस पर आप क्लिक कर दो। लेट सपोज ये जो इसका राइट आंसर है वो बर्लिन है, मुझे पता है, ठीक है। तो मैंने बर्लिन पे राइट क्लिक कर लिया। तो इससे क्या होगा कि राइट आंसर पे क्लिक हो गया है। तो इससे क्या होगा कि जब भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करेंगे उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पेपर पे जब आप राइट आंसर पे क्लिक कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली चेक हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम ऐड न्यू पे अगेन जाते हैं, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन दें, मतलब स्टूडेंट इस पे राइट डाउन करे। ये मल्टीपल चॉइस का हम नहीं चाहते, हम टेक्स्ट बेस्ड का देना चाहते, तो हम टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये टेक्स्ट का क्वेश्चन, तो आप कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो, जैसे कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, लेट्स सपोज साइंस टीचर का क्वेश्चन है ये फोटो साइंस का। तो ये चाहते हो स्टूडेंट्स को राइट डाउन करे तो ये आप दे सकते हो। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स का भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी आएगा पॉइंट्स का ऑप्शन। तो यहाँ पे मार्क्स दे सकते हो इसका कि कितने मार्क्स का है ये। तो आप जैसे इसको 10 मार्क्स दे दिया आपने, और यहाँ पे स्टूडेंट का ऑप्शन रहेगा कि वो राइट डाउन करेगा यहाँ पे। और अगर ये आंसर आप चाहते हो कि स्टूडेंट थोड़ा बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करके लिखे तो ये लॉन्ग आंसर पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसका जो थोड़ा सा स्पेस है वो ज़्यादा मिल जाएगा स्टूडेंट को लिखने के लिए, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड मतलब होता है कि जैसे कि आपको ये क्वेश्चन उसको करना ही करना है क्वेश्चन पेपर के अंदर। अगर उसने ये नहीं किया तो इसको वो सबमिट ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो तब आपको रिक्वायर्ड पे क्लिक करना है।
तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हो, ये इस तरीके का क्वेश्चन भी आप दे सकते हो और यहाँ पे पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो। तो ये कैटेगरी है कि किस टाइप के आप क्वेश्चन दे सकते हो कि एक क्वेश्चन पेपर जब आप मैनुअल भी सेट करते हो तो आप उसमें मैच द फॉलोइंग भी देते हो, ट्रू एंड फॉल्स भी देते हो, टेक्स्ट वाले भी देते हो, राइट। तो सेम वे इट विल वर्क हियर माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये कर सकते हो। अगर आपको कोई और एक चीज दिखाती हूँ आपको, आप एड न्यू पे जाओ, आप फिर से मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करो, ठीक है। अब यहाँ पे जाके ना आप यहाँ पे जो जब आप मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करोगे, लेट्स सपोज आप मैथ्स के टीचर हो, आपको मैथ्स के क्वेश्चन देने हैं इसमें, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे क्लिक करना, इस 3 डॉट के अंदर मैथ्स वाला ऑप्शन चेक कर देना। तो आपको देखो ये मैथ्स के फॉर्मेट में आपको दिखने लगेगा और यहाँ पे देखिए आ रहा है एंटर एन इक्वेशन। तो यहाँ पे आपको ना एक पूरा का पूरा जो कैलकुलेटर टाइप का ओपन हो जाएगा, टूल बॉक्स टाइप का, उसके अंदर आपको मैथ्स के फॉर्मुलेज वगैरह, मैथ्स के जो भी सिंबल्स होते हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए लॉग, एक्स स्क्वायर, एक्स, जो भी बेसिक सिंबल्स हैं, एडवांस तो नहीं बोलूंगी मैं, बट बेसिक सिंबल आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से मैं बता रही हूँ, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा। आपको एड न्यू पे जाना है, आपको चॉइस बेस्ड क्वेश्चन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, यहाँ पे जाना है, इस पे मैथ सेलेक्ट कर देना है बस। देखिए मैथ्स की जो ना क्वेश्चन के टाइप ऑफ इक्वेशन, जैसे आपने लिखा यहाँ पे सॉल्व फॉर एक्स, ऊपर क्वेश्चन में लिख दीजिए सॉल्व फॉर एक्स, क्योंकि ऐसे तो क्वेश्चन बहुत आप लोग देते होंगे क्लासेस में। सॉल्व फॉर एक्स, देन यू कैन एंटर द इक्वेशन। तो इक्वेशन आपको जो भी है, आपको उस तरीके की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर लेट सपोज माइनस देन एक्स, यहाँ से सिलेक्ट कर ले आप, सॉरी ये तो कुछ और है, एक्स सिंपल जो एक्स है वो ये सिलेक्ट कर लें, इक्वल टू 12। इस तरीके की इक्वेशन आप दे सकते हो, ठीक है। या आप इसको टाइप भी कर सकते हो, इक्वल टू 12, और इस पे ओके पे सिलेक्ट कर लो, ठीक है। तो जैसे आप लिखोगे, देखो आपको ऑटोमेटिकली थ्रू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट विल शो यू द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए आप करेक्ट आंसर भी दिखा रहा है, आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो, जो जो आपको क्वेश्चन में ऑप्शन देने हैं, और आपको ये भी दिखा रहा है कि ये इसका आंसर करेक्ट है, तो आप इस पर क्लिक कर दो। तो जब भी स्टूडेंट इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये जो भी अगर उन्हें राइट आंसर चूज किया तो वो ऑटोमेटिकली इसको मार्क्स दे देगा, जो भी आपने पॉइंट्स, आपने अगर इसको 10 पॉइंट्स रखा है तो 10 पॉइंट्स को ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो आपका जो मैनुअल चेक करने का तरीका है ना क्वेश्चन पेपर, वो खत्म है इसमें से, जो आप फॉर्म्स यूज करोगे। बट एक ही चीज आपको चेक करनी पड़ेगी, अगर आप कोई आंसर इनपुट करवा रहे हो, जैसे कि मल्टीपल चॉइस बेस्ड नहीं है, आपने टेक्स्ट बॉक्स दे दिया, राइट, तो टेक्स्ट बॉक्स में तो स्टूडेंट राइट डाउन करेगा, तो उसका कोई प्रोसेस नहीं है चेक करने का, तो आपको वो मैनुअल चेक करना पड़ेगा जब भी कोई आंसर आप टेक्स्ट फॉर्मेट में ले रहे हो। अगर आप चॉइस बेस्ड फॉर्मेट में ले रहे हो तो वो आप पहले ही उसका आंसर, करेक्ट आंसर प्रोवाइड कर लो, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको चेक करके उसी टाइम उसको मार्क्स बता देगा स्टूडेंट को कि आपके इतने मार्क्स, जैसे कि अपने सब क्वेश्चन को आपने 5 या 2 या 3 मार्क्स या 10 मार्क्स का दिया, उसने जो स्टूडेंट ने चॉइस किया उसके अकॉर्डिंग उसको वहाँ पे मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो ये सब ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें जाके एड न्यू पे आप क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पे चॉइस बेस है, टेक्स्ट बेस है। अगर हम यहाँ पे और देखें तो एक फाइल अपलोड का भी हमारे पास टूल अवेलेबल है फॉर्म्स के अंदर। तो फाइल अपलोड पे जाए हम, तो इसको ओके करें, तो देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन लेट सपोज आपको ना कोई बहुत बड़ी स्टोरी स्टूडेंट से चाहिए, कि आजकल स्कूल्स में होते हैं ना, कोई स्टोरी राइट करो या ऐसे राइट करो, वो बहुत बड़ा है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि स्टूडेंट उसको वर्ड या वर्ड में लिखे, वर्ड फाइल को अपलोड करें यहाँ पे आके। जैसे लेट सपोज व्हाट इज, यू कैन जस्ट लेट सपोज कोई भी हम टॉपिक दे देते हैं, अबाउट पॉल्यूशन, ठीक है। ये हमने टॉपिक दे दिया, तो इस पे हमने स्टूडेंट को बोला कि इसको लिखो और इसको इसके रिलेटेड हमें टॉपिक लिखो और इसको अपलोड करें, ठीक है। तो वो वर्ड फाइल में इसको पूरा का पूरा इसको लिखेगा, उसके बाद उसको यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अपलोड फाइल का, और यहाँ पे आप फाइल लिमिट दे सकते हो कि कितनी फाइल वो अपलोड करे, 1 करे, 2 करे, 3 करे, 4 करे, वो सब यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है इसके अंदर, देखिए। और इसका साइज क्या हो फाइल का, मतलब कितने MB तक की फाइल वो अपलोड करे। तो यहाँ पे 1 GB तक मैक्सिमम ऑप्शन है, 1 GB एनफ होता है फाइल का साइज। बहुत सारी फाइल, वो बहुत बड़ी फाइल अपलोड कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे आप ये ऑप्शन भी दे सकते हो। तो वो जैसे कि आपने ये दे दिया, तो वो वर्ड में अपना करेगा, जो भी काम करेगा, वर्ड जो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड जो होता है, ठीक है, या किसी में भी कॉपी में करेगा। लेट सपोज वर्ड में नहीं किया, कॉपी में कर लिया, कॉपी से इमेज उसने कॉपी कर डाउनलोड कर ली और यहाँ पे जाके अपलोड कर दी, राइट। तो ये भी ऑप्शन फॉर्म के अंदर है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का एडवांटेज। अगर हम इस पे प्रीव्यू पे जाके देखें तो देखिए कंप्यूटर के अंदर ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। और ये देखिए सबके अंदर के मार्क्स भी दिख रहे हैं साथ में ही, ठीक है, मार्क्स भी दिख रहे हैं, देखिए पूरे
ठीक है, जिसके जिसके आपने दिए वो सबके, इसके नहीं दिए तो इसके नहीं दिख रहे, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, और इसके सबके आपने दिए तो इसके सबके पॉइंट्स भी दिख रहे हैं। ठीक है, और मोबाइल में इस तरीके का दिखेगा ये, जब अगर स्टूडेंट कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, मोस्टली स्टूडेंट तो मोबाइल से ही लॉगिन करेंगे, तो मोबाइल पे जब टेस्ट देंगे तो उनको इस तरीके का विजिबल होगा ये फॉर्म। ठीक है, तो ये दोनों में कंपेटेबल है, मोबाइल में भी और उसमें भी। तो इसमें जो पॉइंट्स जो मेंशन करना पड़ता है आपको, ये देखिए यहाँ पे पॉइंट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज भी, हर क्वेश्चन के अलग अलग पॉइंट्स भी दे सकते हो आप। एक क्वेश्चन में आपने 10 दिया, दूसरे में आप 5 देना चाहते हो, 5 दे दो, तो ये पॉइंट्स दे दोगे, और यहाँ पे आप करेक्ट आंसर जो भी आपने लिखा है वो चूज कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आंसर चेक होगा और स्टूडेंट को उसी टाइम पे कैलकुलेट करके होल कितना उसने सही किया कितना गलत, वो उसको पॉइंट्स दे देगा। बस ये वाला जो ऑप्शन है ना फाइल अपलोड वाला, इसका आंसर वो चेक नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा, और जो ये टेक्स्ट बॉक्स वाला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको भी आपको मैनुअल से करना पड़ेगा। तो बाकी सारे ऑप्शंस आपके ऑटोमेटिकली चेक हो जाएंगे जितने भी ऑप्शन इसमें प्रेजेंट है, राइट। तो इस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। ओके, वंस यू क्रिएट द फॉर्म, आपने लिखा टेस्ट पेपर जनरल नॉलेज, आप इसको फिर डन पे क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे आप इसको डन पे क्लिक करोगे, देखिए ये क्वेश्चन पेपर ऑटोमेटिकली यहाँ पे अटैच हो गया असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, असाइनमेंट के अंदर वो अटैच हो गया। अब आपको यहाँ पे देखिए ये टाइटल भी ऑटोमेटिकली ले लिया, कितना टोटल मार्क्स बन रहे हैं पूरे क्वेश्चन के वो भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने ले लिए। ठीक है, कौन सी क्लास में असाइन करना है ये सारा, बस आपको ये ड्यू डेट चेंज करनी पड़ेगी। ड्यू डेट मतलब आपको कब चाहिए ये अगर आप असाइनमेंट एज ए असाइनमेंट शेयर कर रहे हो तो आपको ये कब तक चाहिए, कब तक आपको इसका रिप्लाई चाहिए। ठीक है, डेडलाइन क्या है, तो बाय डिफॉल्ट ये टुमारो डेट ले रहा है, तो आप इसको अगर आपको मंडे तक चाहिए तो आप मंडे तक इसको डिफाइन करोगे और यहाँ से टाइम सेट कर दोगे कि मुझे आपको ये शाम को 5 बजे से पहले ये असाइनमेंट मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप असाइन पे क्लिक कर दोगे डायरेक्टली। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली फिल कर ली है, ऊपर टाइटल और सब चीज़ें उसने ऑटोमेटिकली चेक कर ली। उसके बाद आप इसको असाइन पे क्लिक कर दोगे। देखो असाइन पे क्लिक करते ही आपकी असाइनमेंट जो है वो स्टूडेंट को सेंड हो गई, जितने भी स्टूडेंट इस क्लास के थे सबको ये असाइनमेंट सेंड हो गई। ठीक है, तो अगर मैं स्टूडेंट के लॉगिन पे जाऊं, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि वो स्टूडेंट का पॉपअप आ गया। तब तक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपको असाइनमेंट पे जाना है। ठीक है, असाइनमेंट पे जाने के बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपको क्विज पे क्लिक करना है। ठीक है, क्विज पे क्लिक करने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर सेट करना है, तो आपको न्यू क्विज पे क्लिक करना है। देखिए ये आपका जो है नया क्विज ओपन हो गया, इस पर आप टाइटल वाइटल दे के क्वेश्चन ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जब आपका डन हो जाए तो आपको इसको डन पे क्लिक कर देना है। जब आपका क्वेश्चन बन जाए तो इसको आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करते ही देखिए आपका ये इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, सारा का सारा चीज़ें ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी, राइट। तो ये आपको करना है आपके असाइनमेंट के केस में। अभी मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है। ठीक है, तो मैं एक स्टूडेंट के लॉगिन पे जाती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट के लॉगिन पे देखते हैं कैसे दिखती है असाइनमेंट। ये स्टूडेंट अपनी क्लास में गया, जनरल पे गया, असाइनमेंट पे गया। ठीक है, राइट, then he can find out that assignment, so he can find out that assignment in that window, he can open this assignment। ठीक है, और देखिए ये असाइनमेंट उसको दिख रही है, 35 पॉइंट्स की ये क्वेश्चन पेपर है, तो ये डायरेक्टली इसको ओपन करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर इसको दिखेगा, तो यहाँ पे जाके वो आंसर करेगा इसको। ठीक है, ये यहाँ पे जाके वो अपना आंसर लिखेगा फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, इसका आंसर वो सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे पॉल्यूशन के बारे में जो भी फाइल है वो अपलोड कर देगा यहाँ पे, जो भी उसने बनाई होगी वर्ड एक्सेल में। ठीक है, इस तरीके से वो अपलोड कर देगा इसमें। देखिए ये अपलोड हो रही है। ठीक है, तो ये अपलोड हो गई। उसके बाद ये क्वेश्चन कुछ भी है इस पर सेलेक्ट किया और इसको सबमिट कर दिया। तो ये देखिए ये आंसर सबमिट हो गया। अब इसको यहाँ पे रिजल्ट भी दिख रहा है, व्यू रिजल्ट पे जाएगा तो इसको 5 पॉइंट्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इस पे जो है इस पे अभी तक कोई इसको मार्क्स नहीं मिले, आपको मैनुअल चेक करना पड़ेगा इसलिए इसको, क्योंकि ये जो है टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो इसके मार्क्स आपको मैनुअल देने पड़ेंगे स्टूडेंट को। ठीक है, ये वाला चेक हो गया। ठीक है, ये वाला भी चेक हो गया। ठीक है, और ये दो क्वेश्चन थे ऊपर, उस पर मैंने मार्क्स नहीं दिए थे इसलिए इसके मार्क्स कंसिडर नहीं किए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने लॉगिन पे आना है यहाँ पे फैकल्टी अकाउंट पे। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पेपर खोल के देखना है असाइनमेंट में से कि आपके असाइनमेंट में से कितने बच्चों ने इसको कर लिया है। तो देखिए ऑटोमेटिकली आ रहा है दीप सक्सेना है टर्निंग और थोड़ा सा बोल्ड वे में आ रहा है, इसका मतलब इस बच्चे ने इसको कंप्लीट कर लिया। आप जाओगे, ठीक है, आप इसका क्वेश्चन पेपर देखोगे क्या क्या किया है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जाइए, इसको आप चेक करिए, ये जो क्वेश्चन इसने बाकी लिखा है इसको आप मैनुअल चेक करिए। मैनुअल इसको पॉइंट्स दीजिए, लेट सपोज आपने इसको 8 दे दिया यहाँ पे,
ठीक है। ये फाइल अपलोड वाला ऑप्शन जो है इसको डायरेक्टली आप यहीं पे ओपन कर लीजिए। यहाँ पे भी इसको देखने के बाद आप इसको डायरेक्टली पॉइंट्स दे दीजिए। ठीक है, बाकियों के पॉइंट्स देखिए ऑटोमेटिकली गिवन है, क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपने पहले दिए थे इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी आप इसको पॉइंट्स दे दें। ठीक है, 10 आउट ऑफ 10। उसके बाद जब सारे पॉइंट्स दे दें तो आप यहाँ पे देखिए उसको 31 आउट ऑफ 35 स्कोर शो हो रहा है। उसके बाद आप पोस्ट स्कोर पे क्लिक कर दें यहाँ पे आके फॉर्म्स के अंदर। अब क्या है, अब इसको ये सारे पॉइंट्स ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। तो अगर मैं आप स्टूडेंट के लॉगिन पे जाऊँ यहाँ पे, तो अगर वो ग्रेड पे, अब स्टूडेंट कहाँ पे चेक करेगा अपने मार्क्स? ये ग्रेड पे जाएगा। ठीक, ग्रेड पे जाने के बाद देखिए ये उसको पॉइंट्स में शो हो रहा है इसके 31 आउट ऑफ 35। राइट, तो इस तरीके से आप असाइनमेंट को यूज करके, फॉर्म्स को यूज करके आप क्वेश्चन पेपर सेट कर सकते हो और वो स्टूडेंट को भेज सकते हो यहाँ पे। तो आपको सिंपली दोबारा से चेक करने के लिए बता रही हूँ, इसको जाइएगा, खोलिएगा फॉर्म्स को। ठीक है, यहाँ पे जाके आप जो के मार्क्स नहीं मेंशन किए, जैसे कोई टैक्स वाला एंट्री वाला जो क्वेश्चन है उसके मार्क्स मेंशन नहीं होते हैं, तो वो आपको मैनुअली चेक करके देने पड़ेंगे। देने के बाद आप इसको 3 डॉट पे जाइएगा। 3 डॉट पे जाने के बाद पोस्ट स्टोर पे, यहाँ भी तो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, पोस्ट स्टोर पे क्लिक कर दीजिएगा। ये मार्क्स ऑटोमेटिकली स्टूडेंट के अकाउंट पे रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, और आप भी अपने एंड पे ग्रेड सेक्शन पे देख सकते हो जाके। आपके एंड पे तो ये आप एज ए फैकल्टी इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो एक्सेल के अंदर ही। देखिए एक्सपोर्ट तो जितने भी स्टूडेंट हैं सबके आपके मार्क्स एक वन विंडो में आपको दिखेंगे। अगर आपने और कोई असाइनमेंट शेयर की होगी तो वो यहाँ पे विजिबल होगी, उनके सबके मार्क्स दिखेंगे। और इसको आप एक्सपोर्ट टू एक्सेल कर दोगे तो जो भी आप होमवर्क, क्वेश्चन पेपर जो भी दे रहे हो इस फंक्शनलिटी को यूज करके, वो सबके मार्क्स आप यहाँ पे रखो और इसको एक्सपोर्ट कर लो एक्सेल पे। तो आपके पास एक डेटा हो जाएगा, आप उसको हायर अथॉरिटी को शेयर कर सकते हो। ठीक है, एक्सपोर्ट में फेच आउट करके। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को यूज कर सकते हो। ये बेसिक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, यूज करने की। तो मैंने आपको बेसिक चीजें बता दी हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट टीम, प्लीज पोस्ट इन द पोस्ट सेक्शन। आपके पास चैट विंडो है, आप वहाँ पे पोस्ट करिए एंड आवर टीम इज सिटिंग behind me, so they can reply. And also my session is complete, so I am also going to reply you back with all the answers, all the effective answer. So thank you very much for listening. So if you have any doubt, please write it down in the chat. Yes, Pallavi, I have some question. First question is that can we stop chat for the student during the meeting? Yes, you can do it. So what you can do to stop the chat during the meeting, you have to go to your class, right? Then you can click on this 3 dot, click on manage team. ठीक है, मैनेज टीम के अंदर जाके आपको वही मेंबर वाले सेक्शन पे जाना है। देन यहाँ पे म्यूट स्टूडेंट का ऑप्शन होता है, तो आप जब म्यूट स्टूडेंट पे क्लिक कर दोगे ना, तो जो ये मीटिंग से चैट है ना वो डिसेबल हो जाएगी स्टूडेंट की। और वो जब आपको ऑन करनी हो तो आप ये म्यूट वाला हटा देना, जब आपको ऑफ रखनी हो तो आप अगेन म्यूट पे क्लिक कर दोगे। तो वो जितनी भी मीटिंग आप इस क्लास के अंदर शेड्यूल करोगे उस सबके लिए स्टूडेंट की चैट ऑफ हो जाएगी, राइट? तो इस वे में अगेन रिपीट कर रही हूँ, मैनेज टीम पे जाइएगा, मेंबर एंड गेस्ट पे जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे म्यूट स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, चैट डिसेबल हो जाएगी मीटिंग से, राइट? Next question, can you schedule meeting in one shot with different time in different days? You can schedule, no issue with that, but you have to schedule on a regular basis. There is no way to automate the things, right? आप रेगुलरली आइए, आप हर दिन आइए, मीटिंग्स पे जाइए, यहाँ पे न्यू मीटिंग पे क्लिक करिए, राइट? आप जो भी टाइम है आपका डिफरेंट वो आप सेलेक्ट करिए यहाँ पे आके। जैसे आज आपने 5 से 6, कल आप आइए, यहाँ पे कल की डेट विजिबल हो जाएगी, कल आप जाइए यहाँ पे कल की डेट। They want that repeat thing, but in that repeat case you can schedule that repeat, suppose in Sunday, Monday, that you can do it, but main problem is that the timing will be same. टाइम विल बी सेम। अगर आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं है तो आप शेड्यूल नहीं कर सकते। आपको ये मैंने बताया भी है, अगर आपकी टाइमिंग फिक्स है तभी आप शेड्यूल कर सकते हो। अगर आपकी टाइमिंग आज 10 से 5, 10 से 11 है, कल आपकी 12 से 1 है, परसों आपकी 1 से 2 है, तो आप इसको ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, तो आपको रेगुलरली शेड्यूल करनी पड़ेगी। अगर टाइमिंग फिक्स है तो आप यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आता है डेली, वीकली। तो सपोज आपकी 5 से 6 क्लास होती है तो आप डेली पे क्लिक कर दीजिए, तो मंडे से लेकर संडे तक की आपकी क्लास मीटिंग बुक हो जाएगी, राइट? So when they will work on in the teams with the productivity tools, can they do copy paste? Suppose in Word, Excel, if they work in Microsoft Teams in post section, so can they copy paste?
यस यू कैन डू इट, यू कैन गो टू फाइल टैब, राइट। आपको मैंने बताया फाइल टैब पे जाइए आप, जो आप यहाँ पे न्यू पे जाके, ठीक है, आप अपना जो भी आपको वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है उस पर आप क्लिक करिए। और अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है कोई चीज़, आप जिसको नाम दे दीजिए, इसको जैसे आपने ये नाम दिया, आपके सिस्टम में कोई वर्ड फाइल ओपन है तो आप जाके इसमें, जैसे मेरे सिस्टम पे ये ओपन है, ठीक है, तो ये मैंने लिंक कॉपी किया यहाँ से, ठीक है। तो कॉपी करने के बाद आई कैन गो देयर एंड आई कैन पेस्ट हेयर, ये देखिए पेस्ट हो गया मेरा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ऐसे ही आप कोई भी फाइल से यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो डायरेक्टली, एंड यू कैन पुट इट डाउन इन दिस फाइल टैब। तो देखिए आपने जो भी यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है उसके साथ ये कॉपी क्रिएट हो गया है, इस वे में आप कर सकते हो। Next question is that when we will end the meeting, is it possible that it will be end for all the student and student cannot join after that class? You have to click on end meeting from the window. Let's suppose this is my meeting, right? अगर ये मेरी कोई मीटिंग है, मैं आपको दिखा देती हूँ ज्वाइन करके। ये मेरी मीटिंग है, आपने इसके अंदर ज्वाइन किया, राइट, ज्वाइन नाउ पे, यहाँ पे 3 डॉट के अंदर ना ये आपको एंड मीटिंग का ऑप्शन आता है। 3 डॉट इससे करोगे तो सिर्फ आप ही निकलोगे इस मीटिंग से। अगर आप यहाँ पे एंड मीटिंग पे क्लिक करोगे तो स्टूडेंट विल ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द मीटिंग, राइट। ऑल द पार्टिसिपेंट फ्रॉम दिस मीटिंग विल बी रिमूव डायरेक्टली फ्रॉम द मीटिंग। और अगर आप जो कह रहे हो कि स्टूडेंट दोबारा से ज्वाइन ना कर पाए, वो थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपने जो भी मीटिंग शेड्यूल की ना, उसमें ना एक ऑप्शन होता है, आप उस मीटिंग को ओपन करना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपके ना ये मीटिंग ऑप्शन दिखेगा आपको, उस मीटिंग को ओपन जब आप शेड्यूल कर लोगे उसके बाद आपको ये मीटिंग ऑप्शन आएगा। आप इस मीटिंग ऑप्शन के ऊपर जाना, ठीक है। ये आपका मीटिंग ऑप्शन आपके ब्राउजर पे ओपन होगा, राइट। सो इट विल ओपन इन योर ब्राउजर। सो यहाँ पे आपको जो सेटिंग्स है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हु कैन बाईपास द लॉबी, मतलब ये है कि जब आपने देखा होगा कि कई मीटिंग्स में ना आपको लिख के आता है कि प्लीज वेट, वी विल लेट यू इन सून, मतलब आपको लॉबी पे ही वेट करने को बोलता है। तो उसका मतलब ये होता है कि what is going to happen once the organizer of the meeting will join, they will admit you once, then only you can enter into the meeting। तो ये सेटिंग्स आप कर सकते हो। जब तक आप एज ए फैकल्टी ज्वाइन नहीं करोगे, स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर पाएंगे मीटिंग को। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन को हटा के ओनली मी कर दिया। अगर मैंने ओनली मी किया तो सिर्फ आई कैन एंटर इनटू दैट मीटिंग, अदर स्टूडेंट कैन टेक माई परमिशन टू एंटर इनटू माई मीटिंग, राइट। अगर मैंने इसको एवरीवन कर दिया तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा आराम से। और अगर मैंने पीपल इन माई ऑर्गेनाइजेशन रखा तब भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग तो ज्वाइन कर ही लेंगे, राइट। तो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ओनली मी रखना है, ठीक है। ओनली मी रखने का मतलब ये कि आप ज्वाइन करोगे, अदर स्टूडेंट को आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये कर लो। उसके बाद एक आता है हु कैन प्रेजेंट, तो आप किसको प्रेजेंटर बना रहे हो इस मीटिंग पे। तो अगर आप एवरीवन रखोगे तो एवरीवन का राइट दे रहे हो प्रेजेंटर का, सब कोई स्क्रीन भी शेयर कर सकता है, ठीक है। प्रेजेंटर मतलब जैसे मैं हूँ, मैं प्रेजेंटर हूँ, तो मेरे पास राइट्स है कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ अपनी। मैं चाहूँ तो किसी और पार्टिसिपेंट को मीटिंग से रिमूव कर सकती हूँ, राइट। मैं चाहूँ तो सबको म्यूट कर सकती हूँ वन गो पे, ये मेरे पास राइट है। तो ये प्रेजेंटर के राइट होते हैं। बस प्रेजेंटर के पास ये राइट्स नहीं होता कि वो अटेंडेंस डाउनलोड कर सके, राइट। अटेंडेंस डाउनलोड का राइट नहीं होता प्रेजेंटर के पास, और बाकी राइट्स उसके पास होते हैं। तो आप अगर सबको प्रेजेंटर पे एवरीवन पे क्लिक कर दोगे तो आप मीटिंग के अंदर सारे स्टूडेंट को प्रेजेंटर बना रहे हो, राइट। अगर आप ओनली मी रखोगे देन यू आर द ओनली प्रेजेंटर ऑफ दिस मीटिंग, ठीक है। तो ये हो गया। और अलाउ माइक फॉर एवरी अटेंडीज, आपने सुबह की कॉल पे देखा था, हमने आपके माइक डिसेबल कर दिए थे, तब आपके पास ऑप्शन नहीं था कि आप अनम्यूट कर पाओ। तो यही वही ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे तो सब स्टूडेंट के माइक जो है वो डिसेबल हो जाएंगे, वो अनम्यूट कर ही नहीं सकते, उनको आपको ही अनम्यूट करना पड़ेगा। तो ये हार्ड म्यूटिंग टाइप ऑफ फंक्शनलिटी है। अलाउ कैमरा फॉर अटेंडीज, आप चाहते हो कि आपके जो स्टूडेंट है वो कैमरा ऑन कर पाए तो आपको यस करना है, अदरवाइज आप इस पर नो कर दें तो कैमरा भी ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। अलाउ रिएक्शन, मतलब कि मीटिंग्स के अंदर कई रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि आप इमोजी स्माइली शेयर कर सकते हो, क्लैपिंग कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप अलाउड करना चाहते हो तो आपको यस रखना है, वरना आप अलाउड कर जाए तो यस रखना है, वरना आप नो कर दो तो वो सारी जो इंपॉर्टेंस जो इमोजीज वगैरह होती है वो भी डिसेबल हो जाएंगी मीटिंग्स के अंदर से। तो ये सारे ऑप्शंस मीटिंग के अंदर होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव करती हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ स्टूडेंट के लॉगिन से लॉगिन करके कि ये कैसा व्यू होता है। डन हो गया। अब सपोज ये मीटिंग जो मैंने 2 से 3 मैं स्टूडेंट के अकाउंट पे चलती हूँ,
जनरल्स पे ये मीटिंग शेड्यूल है, राइट? मीटिंग्स की लिंक आए हुए, तो इस पे मैं जाके ज्वाइन करती हूँ स्टूडेंट की आईडी से। ये स्टूडेंट का अकाउंट है, ठीक है। तो मुझे देखिए क्या मैसेज आएगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने वहाँ पे सेटिंग कर दी एज ए ऑर्गेनाइजर। तो अभी मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, कैमरा और माइक, ठीक है। अब मैं इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करती हूँ। ये देखिए, व्हेन द मीटिंग स्टार्ट वी विल लेट पीपल यू आर वेटिंग। तो इसको इन ही नहीं करने देगा जब तक आप एज ए ऑर्गेनाइजर जब तक ज्वाइन नहीं करोगे। तो जैसे मैं इसकी ऑर्गेनाइजर हूँ मीटिंग की, मैं फैकल्टी हूँ, जब मैं जाके इसको ज्वाइन करूँगी, राइट, मैं इस पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करती हूँ। तो नाउ आई कैन एंटर इनटू द मीटिंग। So here I can see the message, Deep Saxena is waiting in the lobby, either want to admit or not. तो अगर यहाँ पे मैंने एडमिट पे क्लिक किया तब वो एंटर कर पाएंगे, अदरवाइज वो एंटर नहीं कर पाएंगे। और मैं चाहूँ तो उनको डिनाई पे भी क्लिक कर सकती हूँ। यहाँ पे शो पार्टिसिपेंट पे जाके भी ऑप्शंस होता है। तो अगर मैंने यहाँ पे डिनाई पे क्लिक कर दिया तो वो मीटिंग को ज्वाइन ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो अगर मैंने यहाँ पे अप्रूवल दे दिया तब देखिए वो दूसरी विंडो पे आपको दिखाती हूँ, वो मीटिंग पे इन कर जाएंगे। ये देखिए, और यहाँ पे देखिए योर माइक हैज़ बिन डिसेबल, योर कैमरा हैज़ बिन डिसेबल। तो देखिए इनका कैमरा भी डिसेबल है, माइक भी डिसेबल है यहाँ पे मेरी, क्योंकि मैंने पहले ही इसकी सेटिंग की हुई है। ना तो वो कैमरा ऑन कर सकता है, ना वो अनम्यूट कर सकता है इस माइक से, ठीक है। तो ये सारी परमिशन अब आपके पास है, अब वो सिर्फ आपको सुन सकता है बैठ के स्टूडेंट फ्रॉम देयर एंड। तो इस तरीके से आप सेटिंग कर सकते हो कि आफ्टर द मीटिंग स्टूडेंट आपकी मीटिंग को दोबारा ज्वाइन ना करे। सो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस प्लीज। Yes, mostly we have done. You just check on the published. We have published two link. One is complete tutorial and one is that link that there is a guidebook. So you just use these two guidebook. In the meanwhile, I'm just checking. Repeat again, please. That if student is joined via link, then attendance of that. See, if student join via link, so student cannot join via link. So what you have to do is that you please just schedule the meeting. Just go our guidebook. There is a guidebook we have published. That download that guidebook. It's a very easy way. 1, 2, 3, 4 method in the method we have done it. So you just go through that page by page and schedule the meeting. So student automatically they will be getting on their calendar. So here in the Teams meeting, if they join that in link, they will not be getting anything over there. So please don't share the link. Ask them to install Microsoft Teams on their mobile phone or parents' mobile phone. So from Play Store or App Store, and then just log in with their user ID, which school is going to provide you, right? So otherwise they will be missing a lot of classes and a lot of things they will not be get when you will be taking class, right? So we'll be very soon in next week, we'll be trying to do a session for student for half an hour. So because they don't no need to do much more, that teachers have to do everything on Teams, so they will be only joining the class. So but how they will join, that we'll just tell them in a short session. So next week you will be getting the news that when it will be happening, and please circulate that which we have published, that two link. Just check that chat option. There is a published option. In that published, we have published two link. Just somebody please like it, so we can just understand you have understood that where you have to go. There is a Q&A section, that question and answer section. In that Q&A section, we have posted two link. One link is for complete video tutorial, and one is for the guidebook that you can download it, right? So please download these two things and just go with this and stepwise, so you can understand that what you have to do. This is the updated guidebook. Please circulate it. My request is that it's very small file, so you can circulate it to WhatsApp also for to all the teachers. So what they will be getting, they can just get that easy reference whenever they will be stuck, right? So you please circulate these two link, and the teacher just work on this, so they will be benefited on it. So thanks Pallavi. We will be trying to do another session in next week.
one for you and one for the students. So by that time, it's be safe and just take the class through Teams. Thank you. Thank you. Thank you.